Recording started. Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Mudassir Tabassum. I am heading this webinar today on Power Query, how to automate your data tasks daily. Whatever you are doing in your daily office work or professional pursuit, we are going to automate. What we can automate, we'll learn that. But before that, let me introduce myself. I am heading business intelligence and data analytics in Beacon House Group. I'm leading almost 6 to 7 companies. All the data analytics and business intelligence part is under me. I have a team. I've trained them. I'm looking after almost 200 plus campuses of Beacon House, plus a lot of other sub companies as well, like educators, 700 plus educators, 70 plus colleges of Concordia, similarly UCS and for 50 plus schools, a lot of other sub companies of this group. So I'm heading all the data and business and intelligence part. I have 22 years of experience. I worked in insurance company industry, then I worked in telecom, then I worked for 12 years in banking, then I worked in advertisement and marketing, then I shifted to education sector in 2016 September. Till then, I am in Beacon House. I started off with the assistant manager position. Right now, I'm head of business intelligence and data analytics. I have implemented a lot of analytics parts in here that are still not implemented in Pakistan anywhere, even in telecom, not in banking. And those all BA parts are developed by us ourselves. We have not purchased anything from, like, we have not purchased data analytics tools like Tableau, Power BI, whatever it is. We have developed our own everything. So this tool, that is Power Query, I started using this 4 years back to automate my daily tasks. Then I moved on to big data, and I have started working on Python, BigQuery, machine learning models, artificial intelligence, and a lot of other stuff. So, but when I communicate with people, they are still unable to understand the power of Power Query. This tool is available in Microsoft Excel since last almost 15 plus years, but nobody uses this tool. So I decided to train people on this tool, and I have been training on this tool from last 3 years. I've trained almost 4 5,000 plus people on this tool, and now I am training on machine learning and BigQuery and TensorFlow and all that stuff that is related to Google data science and Google Cloud. So today I'll be presenting you the Power Query. Then I'll share a file with every one of you. I'll share a link. You can download this file from that link, and you can place it in a folder on your desktop so we can do practice. Whatever I'll be going to present you in a presentation, we'll be doing practically as well. So I'll request, keep your Microsoft Office active so you can use Power Query and perform whatever steps I do, you do with me. So you learn instead of just attending and go back. You just practice with me, and you know that how quickly you can perform the tasks that you do with a lot of time consuming activities daily. So it will actually, it's a replica, or it's a substitute towards macros, but it is much bigger than that. So let me share my screen. If my English is actually understandable with you people, and it is easy to understand, should I continue in English? Everybody can. Okay, it's clear, sound loud enough that you can actually listen carefully and you can understand what I'm saying. So let's start doing with the presentation. Let me share my presentation with you people. I have developed specifically for you. So actually,
to give you a basics first, then practical. Otherwise, most of people will miss what the logic behind is this. So let me present my screen. When it's come to you, let me know. I have shared. It is going to be presented now. Can you see my screen now? Okay. Yes. Okay. I'll be presenting this. About me, I have already explained what I have been doing since last 22 years. I actually have done my software engineering as well in 2000 to 2004, and I did my MBA in 2006 to 2008 in finance from UMT. Then I am Google certified, I am certified, I am Microsoft certified, a lot of certifications that people do. I have also done those as well. So this is a simple introduction of mine. So let's move on. I have shared whatever I am. Why automate daily desk data tasks? You people have been doing, majority of us actually do that. What we do 80-70% working on data. Whatever job we have. Sorry, anyone spoke? Okay. We actually, every one of us is dealing with the data in any shape and form. It can be in PDF form, Excel form, hard copies. Data is everywhere. So at the end of the day, every one of us has to represent this data in some shape and form to our managers, our management, to everyone. So what we are daily dealing with the data. But what we are doing is we are wasting a lot of time doing those tasks that are easy to do within seconds with clicks that will do right. And what should we do is we should actually study the data first for better efficiency and productivity. We should clean the data. uh, I am expecting that every one of us is familiar with the data. If somebody I talking about data and is not familiar with the data, whenever I talk about data, it is all about Excel files, CSV files, websites, any hard copies with you, any information in written form with you. It can be image, audio, video, whatever it is with you, this is data. To convert this data into information, we do a lot of work daily. What we do is we'll see practically actually how we use Excel as a 80-70% as a primary tool to do our daily tasks. So instead of using Excel till date, from today you should be using Power Query and leaving that Excel part, because for Excel, I'll explain, you have to use a lot of formulas, you have to learn a lot of formulas, and then there is a speed and accuracy issue that we usually face, and that's why we all spend all our time just trying to convert that data into information. So how easily we can do, we'll see that. What is Power Query? It's a tool. So instead of presenting it in this, should I continue with the presentation or should I open the Power Query simultaneously as well? What is the suggestion from the audience? I cannot see the chat. I have to go to chat. What is suggestion? The audience. Should I open Power Query parallel? Any answers? Yes, parallel, please. Okay, instead of just presenting जी जी the presentation, I should go with the. So let's do collaboratively, all of us
You open your Microsoft Excel with me. Let me open. You open your Microsoft Excel and with a blank screen, please. Please put off your mic. Please put off your mic who is talking. Have you opened your Excel file? Excel? Yes. Okay. Let me open the ribbon first. My ribbon is. Let me open the ribbon where it is. It should be auto there. Okay. I am sharing a link with you people of a file. Here it is. I am share copy link. I'm sharing this into chat. Here it is. Please go to this link. It is pasting. Can you see the link I have shared? Okay. Download this file. This file will be like this. When you open this file open with you. Download this file in a folder in desktop. Please, when you open this file, this will give you this view. Once open, please confirm. Let me change the view so I can see the screen as well. Change layout so I can spotlight. What I can spotlight is I should be actually viewing what I'm doing. No. Done. Everybody has downloaded this file. Actually, when Yes. I go to the file, I cannot see the responses. So I have to come back to this window because in Zoom that is option available. In this, I am trying to find out that option, but that is not available. Change layout. I have tried all the layouts, but this not gives me. Yes, downloaded. Almost everyone has downloaded. Should I continue now? Okay. This is a file. So once you have some data, this is a cleaned data. So when you have a clean, will perform some cleaning as well to just give you a training. So how you can clean data by using Power Query. So you have this file with you. So first of all, whenever you are going to study some data, so mark my words, what you have to do is see, first of all, you have to study how many headers, columns are there in any data set that you have with you. So I have selected this first row. This row has 37 entries in it, and every entry is a column. So first of all, you have to check that your data set is in a shape and form that you can use it. So first is employee ID, age group, and so on. You can check this with me as well. You go to right side and there are a lot of columns having some information in it. So first of all, you try to understand what the data is.
It every analytical part starts from this. So we have 39 columns, and we have almost 1471 rows data in this file. So what we have to do is we will start working on this data in Power Query. So how we'll work on this? First of all, whenever you have to work with Power Query, you have to go to an option that is here. It is that is data. When you there might be some difference between your Microsoft Office option and mine, because I have Microsoft Office 365, the paid version. Microsoft Office 2009 might have some different options, but in 2009 and above, this option is available under the data tab. So I am going to click, you can click on data tab. First of all, let me move back to my screen and ask you, and every one of you has opened this file? Please write yes. Okay. So now next part is you click on A1, cell 1. Whenever you click somewhere in Excel, it gives you a reference that is written here, that is G8. G is the name of the column and 8 is the name of the row. So you have to be into A1. It means you are into column A, row 1. You start from here. So what we have to do, first of all, you should be familiar with the tables in Excel. If you are not available familiar, you can go and watch my YouTube channel, or you can go and watch any YouTube video what are tables in Excel, what are tables in databases. So what we do is we will do nothing, but this will automatically convert this data set into a table. So you will have an option in your window that is get data. You might have options, right? These are the icons with me. One icon is from text file, CSV file. One option is from picture. One option is from web. One option is recent sources. One is from table or range. And one option is getting your existing connection. Even you can click here, and these are the options from you can get data. You can get, okay, what I am going to do is Power Query is, let me show you the first environment and then come back to here. When you will click here, I'll just click this. You use this option from table range. Put your cursor in A1, then click on table range option. What will happen? I'll click on this. See, it will ask you create table. This is automatically going to create a table. That table, see, this is blinking now. Actually, this has selected all the data. If I can zoom, no, I right now I cannot. This is saying that from A1 to AM1471, all the data will be converted into table, and my table will be having headers. My table has headers. See, the bold ones are the headings of my every column. So this will convert this simple data into a table, because once data is into a table form, we can perform a lot of automation tasks on a table. Table is very smart AI tool for Excel and any other business intelligence, artificial intelligence tool. So let me click OK. See what happens. This all data will be converted into a table and a new window will pop up. This is called Power Query. Okay, let me get back to you on screen and you tell me, are you done with it?
Abu Sufyan, you are expert now. You can do. Let me check with others. Not yet. Okay. Do it. Okay. Okay. Should I repeat it or you can do it? Please repeat it. Okay. I go back. Discard. This is converted into a table. But what you have to do is click on cell A1. Use your mouse. Go to cell A1. Once you are there, somebody speak up and tell me that you are there so I can move on because I cannot see the window once I am into this window. सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम अपने वाले एक्सेल में आ रहे हैं तो वहां पर ये इसको कनेक्ट करने की ऑप्शन नहीं आ रही कि फ्रॉम डाटा, ये नहीं आ रहा वहां पे. What office you have? Office version? 2013. So in the start I said at least you should have 2019. Even 2016 can work, but 2013 you will have to install an add-on as a Power Query. But you I have have 2017. then 2017 has this option. You click on data, you will see somewhere here an option of get data at this window. Get and transform data should be the main window. This one. Can you see 2013? You cannot. You can sit with someone then, because for Office 2013 there is an add-on called Power Query that you have to install. Okay, But got it. but for 2016 and above, this is available under the data tab. So are you all other are done with it? Let me get all other are done with it. Should I move on? Yes, Miss Rubina, you are practicing as well? exactly. Okay, that's great. Because whenever I am into this Excel window, I can't see responses and all that because in Zoom that window appears in front of me, but in Google Meet it doesn't appear in front of me. Anyway, what I can do, I can duplicate or I can extend this window. Okay, let me do one thing. If I can extend this window, I can take this window to there. In my second screen, extend. I will extend this to. Let me take this to there. There. Yes. I can see you there, and here I'll keep on performing. My screen is visible to all of you? Yes, sir. Which one? The Microsoft Excel version? Yes, Microsoft Excel. Okay, that's great. Now I can see the responses on my other screen and the rest of the working on my this screen laptop. So I'm moving on from this employee ID. I'll click on data and get data, and this from file. Even this is from table or range. Have you seen this table or range? Are you? Should I move on? I click on this. I enter into a window that is called Power Query. I need confirmation from all of you that you have reached at least at this window. Three people said yes. Hafiz Taimur, please tell me if it is necessary to convert the data into a table. No, don't go into Power BI. We are using right now Excel. This is actually that
Power Query is the same that is into Power BI. Automatically it converts every data into table. So converting into table is itself. If we don't do it, it will do automatically. So you don't have to do anything. It just gets a permission from you that it is going to convert. Hafiz Temusa, you got my point? Okay. So once you have done this, this window should open in front of you. This is called Power Query, and this is same with a bit of difference that is within the Power BI. So Power BI and Excel both have Power Query, both have a bit of difference of functionality, but both are same. So if you learn Power Query, it means you are learning Power BI. And if you are learning Power BI, it means you are learning data modeling. And if you are learning data modeling, it means you are able to develop dashboards from these data models. So let me move on. So this is a window of Power Query. So what interface this has? This is similar to like Excel. So but what we can do with this, let me show you. See, this is the same data that is appearing in Excel that we have loaded this. So what we have what we have done is actually we have loaded the data into Power Query to do some action. So let me introduce with the interface first. It has 5 tabs: File, where you have these options: close and load to, discard and close, optional settings, and help. But this Home tab, then Transform tab, Add column tab, View column tab have different options. We'll be using most of them today, so you understand what options are available and what benefit you can get out of them. So first of all, in Home tab, we have close and load to and close and load. Once we do something in Power Query, we will perform this action. But before that, there is an option, Properties. You can rename this table with whatever you want, and you can describe this in your own way. So what I'll do is I'll rename this table as HR. This data set is a HR data, sample data I have downloaded from internet. HR data. So what happens? I am not adding any description. Fast load data. I'll click on this, so this performs better than Excel. So see, first of all, this is a query window where table that was generated when we clicked there, we have renamed it's HR data by just properties. There is an advanced editor, second option available in the Home tab. What it does is, whatever we will do, it will write a code for you at backend. Everything you do is transformed into programming code. You don't need to understand what code is, how to write a code. If you are a programmer, then that's perfect. If you're not a programmer, everything is done for you by the Power Query at the backend. See, this is a starting. This is a simple code written till now. What we have done. Source is excel.current workbook name table 1. We actually imported table 1 from Excel. This was the content of the data we exported. What it did is it did a function, table transform. Whatever it is done, you don't need to get it into it if you are not a programmer. Then there is an option, manage. You can delete, duplicate, reference, even this you can do on right clicking by here. You can, this is called a query. Query is what? For non-technical people, query is actually writing a simple instruction to get something done. This is like formula. Whatever we do in Excel in formulas, right now here we say it a query, and query is
what instructions we give to data to do some task. So you can copy this, you can delete, rename, reference, you can create a new group, you can create function. You don't need to understand at the first stage all this. But right now, what you have to understand, how to deal with Power Query and how to perform some tasks to automate your daily tasks. So, Abdurrahman, your mic is on. Okay. So, second option, choose column. What you can do, either you can move right or left by this way. Even you can move by your keyboard like this way. You can navigate into this window. Either you can use this option, choose columns, go to column. Let's suppose I want to go to date column. So I was here, I can simply go here. If you have more than 100 columns, what you have to do, you can go here, you can go to column. See, it will give you all the columns in the list. You can go to date column, okay. See, I directly have moved on to that column. So navigating is very easy. You can move with hundreds, more than 100 columns in single click with very ease. And what? Now let me explore this option for you. You want to study one column only. First of all, let's suppose age column. What you have to do is you want to study only this column. What you can do is choose column. You can go. Before I do this, keep an eye on this window, this query setting window. Properties is HR data. These are the steps, macro steps. These are called macro coding. All the steps we will do will be recorded here, and all the code, programming code written behind this will be saved into advanced editor that I showed you earlier. So what I'll do is, first of all, let's see, I'll unselect all, I'll select only age column. See what happens. Right now in this window there is nothing. This is only change type. I select age, what happens? I am left with one column only. See, there is a code written and there is a setting for this. You can go back and you can select more columns one by one, whatever you want. If you want another column, let's suppose, you can click OK. See, you have another column, but you forgot. You can again change setting by age group. Okay. This is how you can optionally use columns what you want to do. So what I want to do, let's suppose these are the age of the people I don't want. I take second age group. I take age group and I now want to perform some function on it. So what I want to perform a function on it. If I am into Excel and I want to calculate, actually what I want to calculate is how many people are there in the age group of 36 to 35. See, here it is. Here it is. So first of all, let me sort ascending order. See, now this is sorted by groups. But what I want to do is, I want to actually calculate how many people are there in age 18 to 25 group. Can somebody tell me, if this was in Excel, what should I do, how to calculate this? This is my first assignment, that I can perform any formula, any function in Power Query with mouse without knowing any formulas, any technical knowledge. I can get it done in a single click. So if this was in Excel, can somebody tell me how will we do it? I want to calculate. Let's see what I want to calculate it. Okay, what I want to calculate is 18 to 25. I selected. So there are 123 rows for this age group. It means I want 18 to 25 in one row, and there should be another row that should be telling me that 123 people are in this age category. You're getting me? Please perform again.
Which one? Which step? This one? Filter step. You can speak up as well instead of typing as well. You can ask me on a mic so I can better understand what you want. You have to illuminate this name tag. Please let me know. Please perform this step. I can't. Your voice is breaking. ये same step This फिर से perform कर दें. okay, okay, okay. What I want to do is my assignment is what is my assignment? There are each. Let me do one step. Let me delete this step. Delete this step. I am back to the original data set. So what I want to do is let me make a duplicate of it so I can tell you what I want to do. I want this column only first. I need only this column. What I will do, I'll do remove other columns. I want only this column to be in my data first. Here it is, all the columns are removed with one mouse click. I have only one column now. So what I'll do, first of all, I'll want to sort it. Ascending order. This has been sorted. So what assignment is, I want to calculate how many employees are there in the age of 18 to 15. So what I'll do is, first of all, I manually check it for you people. See what happens. There are 123 rows. It means there are 123 employees in this age category. That is 18 to 25. But in what format I want this to be done is, let me tell you again. I want this in this format. So there is an option called transform. I go to there. I click on group by. So before performing this, we have 25 people with us. Can somebody tell me, if I want to calculate this, what should I do? What I'll be doing in Excel? Can somebody tell me? Anybody? Take a chance. My assignment is, I want to calculate employees in each age category. So if I was in Excel, I have to do, okay, let me close this, keep this, and show you what I want. What I want. Let me see. This is my data set. I select this all data. Control A. Insert. Pivot table. Okay. In a new sheet, what I'll do is, I want age group. This age group comes here, and I want to calculate. See this. In age group 18 to 25, there are 123 employees. In this age group, there are 606 employees. In this age group, there is. So this is a summary report for an age group. I have used pivot table. But when we use pivot table, this is the output of anything. This is not a report being developed within the system. So what I want to develop it, I develop it once, and it automatically updates daily. I don't do anything, but I update the data at backend. So what I do is, let me, now you can understand what output I want. I want this report. This report is name. We can name this as, let me rename this, age category wise number of EMPLO implies. Right? This is one report. So I am in office and I'm working on this, and employees keep on coming and going, and they add up and they delete from the database. But this report should be developed by me once, and it should be there all the time. So what I'll do is,
I'll delete this pivot. I'll get back to Power Query again. I'll double click this. I'm back to Power Query. So whatever I have done till now, is it easily understandable by you people or not? Two, three. Okay. Who is unable to understand can tell me? I am unable to start query. Because of you, what is your Office version? 2017. You are still unable to open Power Query. Yes, I am unable to able to power query. Is Power there a data tab with you? Yes, there is a data tab. And then can you tell me what are you seeing there? Yes, there are option get external data. Yes, this is what. Click it. Get external data. Click here. Okay. After that, What are the options in front of you? for the from access, from web, from text, from other source, existing connection, Oh, then this is get different. external data. So you need to install that Power Query add-on as well in 2017, because there is no Office 2017 version I've seen. After 2016, it was 2019. So it means somebody has updated some features and named it 2017. So you need to install 2019 at least. Then you can understand. But you can Google it. You can Google it till I am doing this. Where is data tab and how to get data from external source into Office 2017. It might help you. Okay, sir. Okay. So I'm going back to Power Query. Here is that one column that I want to make a report. What I'll do is simply, there is an option called transform. I'm going to perform a function on this data. I'll make this report once and that's done. I will have not to repeat this process again and again and again and again. Whatever happens at the back end, you will see. I'll click on this group by. I'll click on this group by and it will give you this window. This window is actually giving you sum if, count if, average if functionality. So if you click on advanced, are you doing with me or not? Please do it. Yes, please. If you are with me, then are you at this window, group by window? Have you reached there? Abu Sufyan, how many people are there who are actually can understand only in English with you? Abu Sufyan? 2. Okay. Actually, I wanted to make it simple in Urdu for the local ones so they can understand easily what you say. Yes, please. Because in Urdu, it will be much easier for the people to understand this. Till then, there is an other window when you click group by. सर आप उर्दू में
उर्दू में कन्वर्ट कर लो, लीव करके हो गए। तो चलो शुक्रिया। easy मेरा भी information मुंह किसी को नहीं मेरा चाहिए। मेरा भी मुंह अंग्रेजी बोल बोल थक गया था। ओके जी। अच्छा जी, अब आपके पास दो विंडोज हैं, एक बेसिक वाली आ गई है और एक एडवांस वाली आ गई है। ये आपके लिए जादू की विंडो है। आप जितने सामेफ काउंटिफ के फार्मूले एक्सेल में लगाते हैं, यहाँ पे आपसे वो खुद ही से हर चीज लगा देगा, आपको कोई फार्मूला सीखने की जरूरत नहीं है। आपके डेटे के अंदर जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे इस विंडो पे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक, क्योंकि ये एक लिया है तो इसके अंदर एक ही कॉलम था, तो मुझे एज ग्रुप दिखा रहा है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या कि वो क्या करे, इस एज ग्रुप के हिसाब से, ये जो एज ग्रुप बीच में आ रहा है उसके हिसाब से हर रो को काउंट करे और मुझे उसमें टोटल दिखा दे। मैं इसका नाम लिख देता हूं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ EMPLOY। आप लोग भी इसको मेरे साथ कीजिए ताकि आपको आइडिया आ जाए। सी, अब इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं जी असेंडिंग ऑर्डर में। सी, एक रिपोर्ट बनी है 18 से 25 साल में 123 लोग हैं, 26 से 35 साल के 606 लोग हैं, 36 से 45 साल में इतने लोग हैं। ये एक रिपोर्ट बन गई है। अब इस रिपोर्ट का हम नाम रख लेते हैं एज GROP ग्रुप वाइज EMPLOY एम्प्लॉयज। ये मैंने एक रिपोर्ट बना ली है जो मेरे बॉसेस मेरे से डेली मांगते हैं। अब इसकी पहले एग्जांपल देता हूं, इसका फायदा क्या है। अच्छा जी, इसको मैं यहां से करता हूं फाइल, क्लोज एंड लोड। अब आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास लोड होके, ये देखें, इफ यू कैन सी, मेरे पास एक ये इसको मैं दो फाइल्स हैं, एक ये इस पे है, ये एक इस पे है। ये डाटा मैं इसको लिखता हूं QUERY क्यूरी डाटा। ये है मेरा ओरिजिनल डाटा। और ये है मेरी रिपोर्ट एज ग्रुप वाइज रिपोर्ट। मेरी एक रिपोर्ट बन गई है। अब इसको मैं कर लेता हूं, फर्ज करें इंसर्ट, इसके ऊपर मैं लगाता हूं जी इज इक्वल टू सम, और मैं इस टेबल को अपडेट कर लेता हूं। ये टोटल मेरे पास 1470 एम्प्लॉयज नजर आना शुरू हो गए। एग्जाम्पल देने लगा हूं आपको। ये मैं इसको सेव भी कर लेता हूं। यार ये फैन ऑन करना। ठीक है जी, ये एक रिपोर्ट बन गई है एज ग्रुप वाइज। मैं एक दूसरी रिपोर्ट बनाता हूं, वापस जाता हूं उसके अंदर। आप लोग कर रहे हैं प्लीज? आप लोग, मैं इसको आपने एक रिपोर्ट बना ली, ये एज ग्रुप वाइज रिपोर्ट बनाई है आप लोगों ने? बाकी बाकी लोग जो हैं उन लोगों ने बनाई है जी रिपोर्ट। मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ, वर्किंग। ओके, प्लीज कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम थोड़ा कर लेंगे लेकिन समझ आना बहुत जरूरी है। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ जी, आप लोग कर लें फिर मुझे बताएं। वर्किंग, आपने इसी डेटा की, इस क्यूरी की, यहां से इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगी तो इसको राइट क्लिक करके इसका ये नाम रख लेना, रीनेम कर लेना। फिर ये वाली जो रिपोर्ट यहां से शुरू होगी आपके पास। पहले आप जब इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो इस शक्ल में होगी। जब आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे फिर आप बाकी सारे कॉलम्स डिलीट कर देंगे।
राइट क्लिक करेंगे, रिमूव अदर कॉलम्स, उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एज ग्रुप वाइज को बस, और फिर आप उसको सॉर्ट करा लेंगे। ये स्टेप्स सारे नजर आ रहे हैं। फिर आप ग्रुप बाय करवाएंगे, और ग्रुप बाय में सिंपल स्टेप जो मैंने किया था वो ये वाला आपको दिखा भी देगा। जब आप क्लिक करेंगे कि आप एज ग्रुप को यहां से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने हाथ से लिखा था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और यहाँ पे ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट था रोज को काउंट करके मुझे दिखा दे। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया था। तो जब एंड आया तो फिर मैंने इसको दोबारा सॉर्ट कराया, तो ये एक रिपोर्ट तैयार हो गई है जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए एज ग्रुप वाइज। जी, आर यू डन? कितने कितने लोगों ने कर लिया जी? उमैर जैगम ने कर लिया है, अबू सुफियान ने कर लिया है, हाफिज साहब ने कर लिया है, आकिफ ने भी कर लिया है, लबिका ने भी कर लिया है, और जी बाकी लोग हैं जो बाकी भी, असद ने भी कर लिया। डन। इसका मतलब है मेजॉरिटी ने ये वाली रिपोर्ट बना ली। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, HR डाटा पे दोबारा क्लिक करते हैं। अभी हमने एक रिपोर्ट बनाई है सिर्फ, अब इसको हमने दूसरी रिपोर्ट बनानी है। एग्जांपल देने लगा हूं, ये मैंने एज ग्रुप वाइज बनाई थी। अब मैं एक आगे जाता हूं, आगे एक कॉलम आ रहा है बिजनेस ट्रेवल। इसके अंदर भी ये 4 ऑप्शंस मौजूद है कि जो लोग नॉन ट्रेवलर्स हैं, ट्रेवल रेयरली हैं, ट्रेवल फ्रीक्वेंटली है, ट्रेवल रेयरली है। अब मेरे बॉस ने मुझे कहा कि इनकी भी रिपोर्ट बना के दो कि ये लोग जो हैं इनकी क्या नंबर है जो ये करते हैं। अब हमने एक और रिपोर्ट बनानी है। अब आप देखें, आपने एक स्टेप किया था, वो कितनी आसानी से आप दूसरा स्टेप कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो करें। आप ये जो एज ग्रुप वाइज एम्प्लॉयज वाली क्यूरी बनी हुई है ना, इस पर राइट क्लिक करें और इसको डुप्लीकेट कर दें। डुप्लीकेट करके इसका नाम हम रख देते हैं ट्रेवल वाइज। मेरा ख्याल ट्रेवल वाइज ही मैं बनाने लगा था, बिजनेस ट्रेवल। मैं यही नाम कॉपी कर लेता हूं जी, कॉपी। इस पे राइट क्लिक करता हूं, रीनेम, इस पे लिख देता हूं बिजनेस ट्रेवल वाइज, सिंपल। अब आप देखिए, मैंने सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं। अगर मैं एक्सेल में होता ना तो मुझे ये सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ने थे, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी। वो क्या है? ये ग्रुप बाय रोज आ रहा है। मैं जब ग्रुप बाय रोज में आऊं तो यहाँ पे मैंने रिमूव अदर कॉलम्स किया था, तो मैंने सारे कॉलम उड़ा दिए थे। मैं अब यहाँ से सिर्फ देखें, इसकी सेटिंग में गया हूँ। यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, मैंने क्लिक किया है। मैंने एज ग्रुप सिलेक्ट किया था लास्ट टाइम, मैंने उसको खत्म करके बिजनेस ट्रेवल सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। और मैं जब इसको सिलेक्ट किया, मैं एंड पे आया हूँ, यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज करनी है, सॉर्टेड। यहाँ पे जाके बिजनेस ट्रेवल सिलेक्ट करने और ओके करने। सी, अच्छा ये इसको सॉर्ट उसके करा दो। यहाँ तक एरर, अबू सुफियान उसको ये, या यहाँ से ये स्टेप्स यहाँ पे आप इसको अच्छा ठहर जाओ, इसको कॉपी नहीं करो, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। इसको डिलीट करते हैं, आपको फिर एरर नहीं आएगा। इसको डिलीट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये HR डाटा फाइल को ना, हाफिज साहब ने कर लिया, HR डाटा को हम डुप्लीकेट करते हैं। इसका नाम रख देते हैं बिजनेस ट्रेवल, BUSI बिजनेस, TRAV बिजनेस ट्रेवल। ठीक है जी। अब ये देखिए, मेरे पास ओरिजिनल फाइल है। अब मैं वही स्टेप रिपीट करने लगा हूं जो हमने स्टेप एज ग्रुप वाइज एम्प्लॉइज पे किया था। बिजनेस ट्रेवल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रिमूव अदर कॉलम्स, मेरे पास सिर्फ ये कॉलम बचा। ट्रांसफॉर्म में गया हूं, ग्रुप बाय पे क्लिक किया है, और मैंने उसे कहा है कि इसका नाम रख दो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कर देता हूँ, नंबर ऑफ EMPLOYWS एम्प्लॉयज।
ये अब नहीं एरर आएगा। मिस रुबीना आपने किया? लबिका आपका हो गया ये वाला स्टेप? डूइंग, ओके कर लें। रहीम साहब आपका हो गया? मलक नासिर, मलक नसीर साहब आपका तो वो फंस गया ना उस वजह से। एक्चुअली सर मैंने चेक किया, मेरा 2007 ऑफिस है, ये वजह बनी। अच्छा, वो उससे भी पीछे है, बहुत ही पुराना है। जी सर, ये वजह बनी। चलें कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है तो आप जब अपडेट कर लोगे ना तो यू कैन वॉच इट। जी सर, ये रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड हो सकती है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल हो जाएगी डाउनलोड, थैंक यू सर, रिकॉर्डिंग हो। सो नाइस ऑफ यू। ये जी दूसरी रिपोर्ट बन गई जी। किस किस की ये दूसरी रिपोर्ट बन गई है? जिस जिसकी बन गई है मुझे ओके करें, फिर मैं अगला स्टेप करूं। दानिया ठीक हो गया, उमैर की भी चले नहीं। अच्छा अब देखें समझे, ये हमारी एक ओरिजिनल मास्टर डाटा सेट है, उसके अगेंस्ट हमारे पास दो रिपोर्टें हमने बना ली हैं। मिस रुबीना आर यू डन? आपका काम हो, आपकी से रिपोर्ट बन गई है, मुझे आपका भी है कि आपको भी हो जाए क्लियर। मिस रुबीना इज देयर? Yes. ये वाला स्टेप हो गया आपका, ये दो रिपोर्टें बन गई। आपका इंटरनेट का इशू है, आपकी वॉइस नहीं आती। नहीं आई, चलें मैं आगे चलता हूँ। चलें जी, इरम फारूक का भी हो गया। अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एचआर डाटा में जाता हूँ, मेरी एक तीसरी रिपोर्ट मैंने बनानी है। तीसरी रिपोर्ट में बनाता हूँ, फर्ज करें डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट का टी कितनी दफा लिखा गया मेरे से, मैं इसको टी को छोटा कर देता हूँ। डिपार्टमेंट, अब जी अच्छा ये इसमें एरर ही ना आ जाए कि वो कहे डिपार्टमेंट ही गवाच गया। नहीं शुक्र है हमने उसको चेंज ही नहीं किया था। अब मैं क्या करता हूँ, अगली रिपोर्ट बनाता हूँ डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज। इस डिपार्टमेंट वाइज से बनाना है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ DEPT डिपार्टमेंट वाइज, सिंपल। अच्छा वो कहता है डॉट नहीं आ सकता, DEPT डिपार्ट वाइज। मैं डिपार्ट वाइज पे क्लिक किया जी। मैं क्या करता हूँ, सेम स्टेप रिपीट करने लगा हूँ, बिजनेस ट्रैवल किया था हमने। मैं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज एन इशू प्लीज कैरी ऑन, ओके। डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम्स, मेरे पास सिर्फ डिपार्टमेंट बच गया। अब मैं दोबारा से वही करता हूँ, ग्रुप बाय, और उसे कहता हूँ इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ EMPLOYWS ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास तीसरी रिपोर्ट बन गई है। तीसरी रिपोर्ट बन गई है डिपार्टमेंट वाइज। मैंने क्या किया, मेरे पास एक HR का डाटा था, मैंने उसको यूज करना शुरू किया। मैंने उससे एक रिपोर्ट बनाई कि एज वाइज मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं। दूसरा एनालिसिस बनाया बिजनेस ट्रेवल वाइज कितने एम्प्लॉइज हैं, किस कैटेगरी में। फिर डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज बना लिए। फिर मैं जाता हूँ एक और रिपोर्ट बनाता हूँ। मैं आपको ये रिपोर्ट्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब मैं बनाता हूँ डिपार्टमेंट के बाद, चले ये एजुकेशन फील्ड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ जी, कॉपी। अब इसको हम फिर से डुप्लीकेट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं जो मैंने कॉपी किया है, एजुकेशन फील्ड वाइज। अब मैं वही स्टेप करूंगा, एजुकेशन फील्ड को सिलेक्ट कर लूंगा, रिमूव अदर कॉलम्स, सिर्फ एक कॉलम बचा, ग्रुप बाय किया, इसका नाम ही रख देता हूँ नंबर
ऑफ �ＥMPLOYES नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मेरे पास चौथी रिपोर्ट भी बन गई। आप लोग मुझे बताएं, ये 4 रिपोर्टें बन गई हैं जी। कोई एक बंदा मुझे माइक पे बता दे कि 4 बन गई हैं। जी हो गई 4। ओके, अबू सुफियान के अलावा हाफिज साहब। हाफिज साहब आप भी एक दफा माइक पे बताएं मुझे, ताकि मुझे यकीन हो जाए। यस सर, हो गया। डन। ओके, आकिफ का भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक कामयाबी से एक मास्टर डाटा से 4 रिपोर्टें बनाने में कामयाब हो गए हैं। ऐसे ही है जी, मेरे साथ स्पीकर पे जी भी सर। कम्युनिकेशन जी करें। सर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस चीज को चेक करते हैं कि हमने ये रिपोर्ट बना ली है तो ये ऑटोमेट कैसे हो। मतलब ये है कि मैंने आज रिपोर्ट बनाई है, कल कोई 10 बंदे रिजाइन कर गए हैं, 6 नए आ गए हैं, तो मेरा डाटा तो अपडेट हो गया और हर रिपोर्ट के अंदर तब्दीली आएगी। तो मैंने तो वो मुझे फिर सिफर से सारा कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही है जी। नो सर, जी मेरे जी। ख्याल से रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा जब एक्सेल के अंदर अपडेट करेंगे चीजें। जी, यही मैं करना चाह रहा हूँ। इसको क्लोज करते हैं। इसको कहते हैं कि कीप करो और लोड कर दो। मैं एक्सेल में वापस आ गया हूँ। अभी आप नीचे देखिएगा, शीटें बन जाएंगी। ये आ जाए, डाटा आ जाए जरा। ये देखें, एक रिपोर्ट है एज वाइज हमने बनाई थी, दूसरी एजुकेशन फील्ड वाइज है। इसको भी मैं ऊपर एक, आप लोग भी करना तो कर लें, इंसर्ट करता हूं ताकि टोटल हमारा इज इक्वल टू सम। और मैं इसको ले लेता हूं कि ये मुझे इसका भी टोटल दे दे। देखिए 1470 के 70 एम्प्लॉयज उधर भी थे, इधर भी हैं, कॉमा डाल के इसके भी डेसिमल उड़ा दे। डिपार्टमेंट वाइज भी हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इंसर्ट 1 रोज ऊपर, इसको करते हैं इज इक्वल टू सम और इसको एंटर करते हैं। और ये देखिए फिर 1470, ये रिकंसिलिएशन भी हो रही है कि हर रिपोर्ट जो है ना वो अपनी जगह पे बिल्कुल सेम नंबर भी आउटपुट में दे रही है। अब बिजनेस ट्रेवल में भी मैं करता हूँ इंसर्ट, टॉप सेव भी कर लूँ मैं, कंट्रोल S, यहाँ पे भी लगाता हूँ सम टैब, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ तक, एंटर। ये देखें 4 रिपोर्टें हैं, तो चारों रिपोर्टों की समरी जो है ना नंबर, वो हमारा आपस में मैच हो गया है। इधर भी 1470 है, ये भी 1470 है, ये भी 1470 है, ये भी 1470। ये 4 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। यहां तक सबको समझ आ गई है। अभी भी जी हमारे सर, पास, क्लियर है। अभी भी कोई 22 लोग हमारे साथ हैं, तो 22 लोगों को समझ आ गई है जी। कौन से लोग ऐसे हैं जो जवाब नहीं दे रहे, मैं देख कैसे पाऊं। मैं पूछता हूँ, सब ने जवाब दिया है। जी, this is how we are getting. ओके, मिस उस्मान यूसुफ ने अभी तक कोई उस्मान, यू आर विद अस? Yes, sir. I am with you. I am here, sir. और आपको ये समझ आ रही है, आप कर रहे हो साथ? जी सर। अच्छा चलो ठीक है। या तो आपको बहुत समझ आ रही है, यहाँ पे मेरा ख्याल ऊपर से गुजर ही कोई गड़बड़ है। और जिशान रियाज, आपको भी समझ आ रही है? सर मेरा ऑफिस का एक्चुअली वो वर्जन का इशू था, वो मैंने एक न्यू वर्जन डाउनलोड तो कर लिया हुआ है, लेकिन डाटा टैब में आके जब मैं उसको कहता हूँ कि फ्रॉम डाटा रेंज, तो वो वहां पर एक एरर थ्रो कर रहा है। तो आप एक अपनी पेस में जा रहे हैं, तो मैंने फिर इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि वो बाकी लोग ना डिस्टर्ब हो, मैं बाद में इसको ट्राई कर लूंगा। वो कोई एक्सेप्शन एरर दे रहा है मुझे वहां पे ना। अच्छा कोई बात नहीं, उसमें उसका दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। अब मुझे जी याद श्योर। कराना, ठीक है? मैं श्योर जरा श्योर। 2-3 रिपोर्टें बनवा लूँ। ठीक है, जी ठीक है। ठीक। चलो। अच्छा जी, अब आपने ये रिपोर्टें बना ली हैं। अब आप देखें, हर एक में 1470 का नंबर मैंने लगाया है चेक करने के लिए कि ये रिपोर्ट हमने रिकंसाइल करनी है कि हमारा टोटल नंबर सही आता है। अब हम काम करते हैं। ये हमारा क्यूरी में डाटा था, ये है हमारा ओरिजिनल डाटा जो हमने फाइल आप लोगों से भी शेयर की थी मैंने। ये है, उससे हमने पावर क्यूरी में ये HR डाटा की एक मास्टर फाइल बनाई थी। और फिर उसके ऊपर हमने 1 2 3 4 रिपोर्टें बनाई।
अब होता क्या है, फर्ज करें आज डेट है 16 17 17 तारीख को ओरिजिनल डाटा हमारा ये था, और ये हमने 5 रिपोर्टें बना ली, 18 तारीख आई है। अब उस डाटे में कुछ चेंजेस आ गई। अब वो चेंजेस जो हैं वो हमारे उसमें कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, हमने ये देखना है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं जाता हूं कंट्रोल डाउन, नीचे से ये वाले जो है ना, ये वाला डाटा, सिर्फ इतना डाटा जो रो नंबर 1464 से 1471 तक है, फर्ज करें ये लोग रिजाइन कर गए हैं, मेरे डाटा से निकल गए हैं, मैं इनको करता हूं कंट्रोल एक्स, कट कर लेता हूं और इनको निकाल के इधर रख लेता हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे ओरिजिनल डाटा में से ये डाटा डिलीट हो गया। सही है, मैं इसको कर लेता हूं सेव। तो अब मैं अगर इसको चेक करूं तो मेरे पास 1470 की बजाय 1462 लोगों का डाटा बच गया। अब मेरे लिए चैलेंज क्या है कि अब मैंने इसी डाटा सेट को बिजनेस ट्रैवल में भी इंप्लीमेंट करना है, डिपार्टमेंट वाइज में भी करना है, एजुकेशन फील्ड में भी करना है, एज ग्रुप, क्योंकि मेरे कोई 6-8 बंदे कम हो गए हैं, वो चले गए। ऐसे ही है जी, तो इसका मतलब मुझे रिपोर्टें अपडेट भी करनी है। क्या मेरा सवाल ठीक है जी, डाटा अपडेट होना चाहिए? बोल के बताइएगा। जी 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 होना अपडेट होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो अब दो तरीके हैं कि एक तो एक्सेल में हम फार्मूले लगा लेते थे, तो फार्मूले सामने काउंटिफ लगा होता है, तो जब हम ज्यादा रिपोर्टिंग बनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा तंग करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, मैं एक काम करके देखता हूँ, अगर कामयाब हो जाए। यहाँ पे डाटा के अंदर ही एक रिफ्रेश ऑल का बटन लगा हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे 1470 है, ये भी 1470 है, हर रिपोर्ट में एम्प्लॉयज टोटल आ रहे हैं। अब रिफ्रेश ऑल करता हूं, ये देखिए, उसने क्या किया है, 1470 में जो मैंने डाटा डिलीट किया था, किधर गया ओरिजिनल डाटा, ये वाला, इसमें वो टेबल के अंदर चीजें मौजूद हैं, ये टेबल है, उसने खाली रखा, मैं इसको रोज ही डिलीट कर देता हूं। मैं ऐसे कहता हूँ मेरा टेबल ही खत्म हो गया, डिलीट। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से जाके रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि वो टेबल का हिस्सा था तो खाली दिखाई जा रहा। अब आप देखिए कितना हो गया जी, ये 1462 हो गया एक रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली। मैं दूसरी रिपोर्ट में आया हूं, ऑटोमेटिकली हो गया, तीसरी रिपोर्ट में, चौथी रिपोर्ट में। ये एक सैंपल है कि आपका डाटा अपडेट हुआ और आपने रिफ्रेश का बटन दबाया और एवरीथिंग इज अपडेटेड। यहां तक समझ आइए? जी सर, क्लियर है। एक रिपोर्ट बना के आपने रख लिया और अब पीछे सिर्फ आप डाटे के साथ खेलना शुरू करेंगे। अब मैं दोबारा से एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने डाटा कट करके यहाँ पे रख लिया था, ये सारा मैंने ये देखे, मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, ये ओरिजिनल डाटा था, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये डाटा दोबारा से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और ये उसी टेबल का हिस्सा बन गया। कंट्रोल एस, मैं वापस जाता हूँ इस रिपोर्ट पे, फिर से बटन दबाता हूँ रिफ्रेश ऑल, ये 1470 हो गया जी। ये भी 14, मतलब मैंने सिर्फ डाटा कॉपी पेस्ट किया है, मेरा सारी रिपोर्टें ऑटो अपडेट हो गई है। ये तो सिर्फ 2 रिपोर्टें हैं, 4 रिपोर्टें हैं। अगर आपने इस तरह की कोई 1000 रिपोर्ट बनाई हो और आपको डेली अपडेट करनी पड़ जाए तो क्या हाल होगा। और एक्सेल शीट में तो वैसी मत मारी जाती है। जहां तक क्लियर है, एक स्टेप मुश्किल पे चलो अब। सॉरी सर जी आपको डिस्टर्ब करो। वही जो जी जी, मैं जो रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो वो डिलीटेड कॉलम भी उसके साथ ऐड हो रहे हैं, यानी वो मेरे पास आ रहे हैं वो आठ। तो आप वो मतलब वो स्टेप रिपीट कर ले।
अच्छा, वो हुआ, वो ये है कि जब आप ओरिजिनल डाटा पे आएंगे ना, तो आपने क्या करना है, जो आपने डिलीट करना है ना, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। मैंने क्या किया था, यहां से इसको सिलेक्ट किया था, इसको ऐसे यहां से आपने कट करना है, ठीक है रही। जी जी जी, सुन रहा हूँ। आप इसको कट करेंगे, कट करके आप अपने पास यहाँ पे कहीं अलहदा से रख लेंगे, क्योंकि मैंने दोबारा पेस्ट करने थे ना, तो मैंने फिर इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया था। यहाँ से ओरिजिनल डाटा से कट करता था, तो ये दूसरी करता शीट हूँ कट सही है, सुन रहा हूँ सर। और पेस्ट। ठीक है, अब ये देखो मेरे ओरिजिनल डाटा में से वो उड़ गए हैं, लेकिन ये टेबल वही का वही मौजूद है, नजर आ रहा है। जी मैं इस रोज को डिलीट करूंगा टेबल में से, तो फिर ये डिलीट होगी ये। ओ अब देखो ओके टेबल जी, से ओके। मैं वही समझ आ स्टेप गई। वही स्टेप दोहरा रहा हूँ मेरा। हाँ, क्योंकि वो टेबल का हिस्सा है, वो खाली तो है लेकिन वो टेबल का हिस्सा है, तो उधर कैलकुलेट करके ना आपको ब्लैंक दिखाई जाएगा, तो आप उसको उसके अंदर रखोगे, उसको डिलीट करोगे। ठीक है, जी जी, हो गया सर जी, थैंक यू सर। चलो चलो, वेलकम। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी, ये काम हो गया। अब बाकी लोगों का भी हो गया जी, ऑल पीपल डन। चैट में देख लेता हूँ, चैट में बताते हैं सारे। चैट किधर गई, इधर। अच्छा, ये पीपल है, पीपल बंद करता हूँ, चैट। ओके, डन हो गया सबका। अच्छा, अब मैं एक स्टेप नेक्स्ट जाने लगा हूं। हमने सिंगल वन डायमेंशनल रिपोर्ट बनाई है अभी, अब हम टू डायमेंशनल रिपोर्ट पे जाने की कोशिश करते हैं। मैं वापस गया हूं, पावर क्यूरी में डबल क्लिक किया, मैं पावर क्यूरी में आ गया हूं। मैं क्या करता हूं, इसी एचआर डाटा की कॉपी बनाता हूं, अगेन डुप्लीकेट। और अब मैं क्या करता हूं, ये जो चार रिपोर्टें मैंने अलग अलग बनाई थी ना, ये मैं एक ही रिपोर्ट के अंदर बनाने की कोशिश करता हूं। मैं एज ग्रुप वाइज, बिजनेस ट्रेवल वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, एजुकेशन फील्ड वाइज, मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, तो मैं कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं मेरे साथ, आप जाएं, यहाँ पे था चूज कॉलम, आप ऐसे करें मेरे साथ, चूज कॉलम में जाएं और वो सिर्फ वो वाले कॉलम सिलेक्ट करें जिस पे हम अभी काम करना चाहते हैं। सिलेक्ट ऑल खत्म करें। एज ग्रुप था, बिजनेस ट्रेवल था, डिपार्टमेंट था और एजुकेशन फील्ड था। ये चार मैंने सिलेक्ट किए, आप लोग भी चार सिलेक्ट करें और ओके बटन दबा दें, बाकी सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। यहां तक करके मुझे ओके की आवाज लगाएं। इसका मैं नाम रख देता हूं कंबाइंड रिपोर्ट, COMBANED, कंबाइंड रिपोर्ट, REPORT रिपोर्ट। ठीक है जी, आप लोग यहां तक पहुंच गए। कंबाइंड, ये चार कॉलम आ गए। जी सर, आ गए। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूं, इन सब को सिलेक्ट करता हूं सारे। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया, आखिरी कॉलम को सिलेक्ट किया, तो मेरे सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। मैं स्टेप रिपीट करूंगा, ट्रांसफॉर्म ग्रुप बाय। ये देखिए, अब वहां पे पहली दफा में एज ग्रुप एक दफा था बस, फिर बिजनेस ट्रैवल एक दफा था, डिपार्टमेंट एक दफा, एजुकेशन इस दफा मैंने सारे ही ले लिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वही चीज, नंबर ऑफ EMPLOY एम्प्लॉइज। मैं ओके का बटन दबाता हूँ। मेरे पास एक रिपोर्ट रेडी कंडीशन में आ गई है, जिसमें अब हर डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास वो रिपोर्ट बन गई। अब इसको स्टडी कैसे करना है, हम इसको ऐसे से देखते हैं, क्लोज एंड लोड करते हैं। एक रिपोर्ट बन गई मेरे पास, पांचवी रिपोर्ट बनेगी। ये यहाँ पे अलहदा से पांच, ये जितनी रिपोर्टें बन रही हैं ये राइट साइड पे उसकी क्यूरीज बनती जा रही है। पांचवी रिपोर्ट आ गई, कंबाइंड रिपोर्ट। अब हम इस जो हमने अभी रिपोर्ट बनाई कंबाइंड रिपोर्ट, इसका फायदा सोचिएगा, एक्सेल में बनाएंगे ना आप, आपको लग पता जाएगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखना है एज
18 से 25 में किस कैटेगरी में, पहले तो मैं हर कैटेगरी में देख सकता हूँ। 18 से 25 में, अच्छा इसको इसको इस तरह से देखने की बजाय अगर मैं आपको और आसान तरीका बताऊं, ऐसे स्टडी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सारा डाटा, इंसर्ट, पिवट टेबल, न्यू, इधर से आ जाते। मैं से कहता हूं एज ग्रुप, बिजनेस ट्रैवल, डिपार्टमेंट, एजुकेशन फील्ड वाइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे दो। आप ये देखें, इसको मैं रिपोर्ट का फॉर्मेट बदलता हूँ, शो टेबुलर फॉर्म, और इसे मैं कहता हूँ इसका डिजाइन बदल दो। ये देखें, ये एक रिपोर्ट सिर्फ बटन दबाने से तैयार हो गई है, जिसके अंदर इतना कुछ है कि आप कैसे इसके साथ प्ले कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आपका बॉस कहता है मुझे एज ग्रुप वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बता दो, बस आप इस पे राइट क्लिक करें, इसको करें कोलैप्स एंटायर फील्ड सी। ये पहली रिपोर्ट है जिसके अंदर आपको 1470 एम्प्लॉयज एज कैटेगरी वाइज नजर आना शुरू हो गए। यहां तक कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है सर एकदम। किसी और को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, मैं आगे चलूं। रिपीट प्लीज। ओके, मैंने क्या किया जी, ये कंबाइंड रिपोर्ट सारी सिलेक्ट की, यहां से लेके ऐसे जो मैंने उधर से बनाई थी, यहां से शुरू करना है या पावर क्यूरी से दोबारा रिपीट करूं? दानिया, वेरी गुड। असद इम्तियाज, जी मुझे सर, यहीं बताएं, से। यहीं से या पावर क्यूरी में जाऊं? जी यहीं से। यहीं से। जी। अब ये मैंने यहां से सिलेक्ट किया था, यहां से मैंने उसे एक पिवट टेबल इंसर्ट किया। तो जब पिवट टेबल इंसर्ट किया, समझ लें ये मेरे पास ब्लैंक शक्ल में ये ऐसे पिवट टेबल आया, ये सिंपल पिवट टेबल आ गया मेरे पास, ये देखिए, ठीक है। जी। अब मैंने यहां से ये सारे फील्ड जो है ना, पिवट टेबल पे आते हैं कि नहीं? जी सर। ओके, मैं ये सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एज ग्रुप को, बिजनेस ट्रैवल को, डिपार्टमेंट को, एजुकेशन फील्ड को। ये देखो इस साइड भी उसने सारे मुझे बना दिए, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को भी सिलेक्ट करूंगा, ये इधर ले आया। वो क्या करता है, जो टेक्स्ट फील्ड है वो सारे रोज में ले आता है, और जो नंबर वाले है वो सम ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे ले आया। अब ये मेरे पास एक टेबल बन गया है जिसमें उसने पहला स्टेप, ये 4 रिपोर्टें अलग अलग बनाई थी ना, अभी एक ही जी। रिपोर्ट में सारा कुछ कैसे नजर आएगा। ये देखिए, पहला हमने रिपोर्ट बनाई एज ग्रुप वाइज, एग्जैक्टली ये वाली चीज यहाँ पे नजर आ रही। जी। अब इसका अगला स्टेप है, मैं क्या करता हूं, एक्सपैंड एंटायर फील्ड। अब आप देखें, इसको मैं अगर यहां से शुरू करूं, लाइफ एंड साइंस रिसर्च एजुकेशन, इससे कर लेते हैं कोलैप्स एंटायर फील्ड। ये देखें, अब रिपोर्ट की डायमेंशंस देखनी है आपने, क्योंकि अगर आप लोग डाटा पे काम करते हैं ना, तो फिर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप डाटा पे काम नहीं करते तो फिर इसका कोई इतना फाका नहीं होने वाला। ये देखिए, 18 से 25 की एज में नॉन ट्रैवल वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने लोग हैं? 4 लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर, क्लियर है। ओके, अब आप इसको एक एक करके ओपन भी कर सकते हैं, एक एक करके बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए, प्लस का बटन है, आप हर डिपार्टमेंट को ओपन करके देख सकते हैं, बंद करके देख सकते हैं। मैं क्या करता हूं, एक एक की बजाय मैं कोलैप्स एंटायर फील्ड, ये मेरी पहली रिपोर्ट है, मैं दूसरी रिपोर्ट 18 से 25 की बजाय मैं देखना चाहता हूँ 46 से 55 के अंदर नॉन ट्रैवल में ह्यूमन रिसोर्स में कितने लोग हैं।
नॉन ट्रैवल में, ह्यूमन रिसोर्स में मेरे पास एक ही बंदा है। 46 से 55 की फील्ड में जो ट्रैवल नहीं करते, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर 3 डिपार्टमेंट के अंदर 3 7 6 लोग हैं जो हैं, और जो टोटल 11 बनते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की मैंने कोशिश की है, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया पहले से। ठीक है जी, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? एनीवन? जी सर। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ये पिवट टेबल डिलीट करता हूँ। मेरे पास ये कंबाइंड रिपोर्ट बन चुकी है। अब मैं फिर से ओरिजिनल डाटा जो मेरे पास है, उस डाटा में से अगर कुछ डिलीट करूंगा तो आपको लगता नहीं है, रिफ्रेश करूंगा तो मेरी ये रिपोर्ट भी अपडेट हो जाएगी? ऐसा ही है। इसको सेव कर लेता हूँ, तो मेरी सारी रिपोर्टें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। ये पहला स्टेप है जिसमें आप बहुत सारी रिपोर्टें डे बाय डे बना के रख सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि मैंने रिपोर्ट तो बना ली, ये रिपोर्ट है। मैं एक काम करता हूँ, इसी रिपोर्ट को डैशबोर्ड की शक्ल देने की कोशिश कर। इंसर्ट पिवट चार्ट, यहीं पे एग्जिस्टिंग शीट में, यहाँ पे। ओके, तो नहीं, मुझे उसी के अंदर चाहिए। इस पे इंसर्ट पिवट चार्ट, एग्जिस्टिंग शीट, लोकेशन यहाँ पे। ओके, और मुझे एज ग्रुप और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और इसको मैं करा देता हूँ, इसमें डाटा लेबल्स ऐड कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। एक ये मेरे पास, एक वो जो रिपोर्ट थी उसका, ये मेरे पास चार्ट बन के आ गया। ये मेरे पास चार्ट बन के आ गया। ठीक है जी, ये एक इसका चार्ट बन, मैंने क्या किया था, वो रिपोर्ट बनी बनाई है, उसके अंदर डाटा मौजूद था, मैंने उसके ऊपर एक और से चार्ट बना लिया है। इसी तरह मैं एजुकेशन फील्ड में जाता हूँ, इसी को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पिवट चार्ट, इसी में एग्जिस्टिंग, इसी के सामने कहता हूँ कि तुम मुझे एग्जिस्टिंग में वही वाला फील्ड दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और फिर मैं वही काम करता हूँ, डिलीट डिलीट डिलीट, और डाटा लेबल ऐड। और इसको मैं सॉर्ट भी करा सकता हूँ, सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये मेरा दूसरा चार्ट हो, इसको भी मैं छोटा करके रख लेता हूँ। लाइनें भी मैं बैथ उड़ा देता आता हूँ। दो, ठीक है, एक दो, तीसरा इंसर्ट पिवट चार्ट, एग्जिस्टिंग में यहीं पे ऐड कर दो। ओके, वही चीज, ये मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप वही है। इसमें किसी को परेशानी हो तो बोल के मुझसे पूछ सकता है। कर कुछ नहीं रहे, हम उसी को रिपीट करके सिर्फ चार्ट बना रहे हैं, डाटा हमने पहले ही बनाया हुआ था। क्योंकि आपको हर वक्त कोई ना कोई रिपोर्ट बनानी पड़े, उससे बेहतर है बना के रखी। ये लें जी, कंट्रोल जेड। ओहो, आ जाएगा ये। अब ये 3 हो गए। मैं क्या करता हूँ, एक नई शीट ऐड करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, DASH-बोर्ड। ठीक है जी, मैं जाता हूँ, इसको इससे से कट करके इधर ले आता हूँ। ये मेरा एक चार्ट है, इधर जाता हूँ, इसको कट करता हूँ, ये मेरा दूसरा चार्ट है, कंट्रोल जेड। इसके ऊपर नहीं पेस्ट करना है।
इधर गया चार्ट, ये तो हमने दो ही बनाए थे, तीन बनाए थे? एक और है सर, 3 है। तीसरा किधर गया? डिपार्टमेंट वाइज का है। वो मैंने कट कर लिया है, लेकिन डैशबोर्ड मेरा ख्याल ओवर राइट हो गया। ये है एज ग्रुप वाइज, ये डिपार्टमेंट एजुकेशन फील्ड वाइज जो है ना, इसका चार्ट उड़ गया। मैंने डिलीट कर दिया है, तो दोबारा डाल देते। ये ले, ये क्या उसके ऊपर पेस्ट हो जाता है? नहीं, तो व्यू छोटा कर देता। नजर आ रहे हैं चार्ट्स की नहीं? ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो गया? मैंने कोशिश तो बड़ी की है कि मैं ना ही मुश्किल कुछ भी करूं। जो लोग हैं वो मुझे बता सकते हैं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ? एग्जाम्पल दिए, 3 चार्ट बना के हमने रख लिया। अब आपने डेली कोई काम नहीं करना। आपका पीछे से कोई भी एक बंदा है, ओरिजिनल डाटा जो हमारी फाइल थी, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 26 से 35 वाली एज कैटेगरी में 606 लोग हैं। ठीक है, अब हम ओरिजिनल डाटा को जब भी छेड़ेंगे तो ये सारी चीजें ऑटो ऑटो अपडेट हो जाएंगी जी। क्या कहते हैं आप? ये चार्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे। हेलो? जी सर। ठीक है, अब आप, अच्छा, 1 मिनट मुझे देखने दें। ठीक है जी, अब हमने ओरिजिनल डाटा से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल डाटा से हमने 4 इंडिविजुअल रिपोर्ट्स बनाई, एक कंबाइंड रिपोर्ट बनाई, फिर इंडिविजुअल रिपोर्ट से हमने 3 चार्ट्स बनाए जिसको हमने डैशबोर्ड का नाम दिया। ये सारा कुछ ऑटोमेटेड कैसे है? आप ओरिजिनल डाटा में जाएंगे, ओरिजिनल डाटा को आप अगर चेंज करेंगे तो आपका अल्टीमेटली ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हम उसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से इतना जो है ना, इसको मैं कट कर लेता हूँ, देखते हैं कि हमारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट होती हैं कि नहीं होती। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl Z। ओरिजिनल डाटा से मुझे टेबल की शक्ल में ही उठाना है इसको, तो उधर से कट कर ले, Ctrl X, शीट, Ctrl V। ओरिजिनल डाटा से मैं ये रोज डिलीट कर देता हूँ जी, डिलीट। इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम आते हैं जी डैशबोर्ड में। ये नंबर्स हम देखते हैं कि ये नंबर चेंज होते हैं कि नहीं होते। डाटा, रिफ्रेश ऑल। अब हम ये जो हमारे ये 1458 हो गए जी, यहाँ पे ये 1470 का 70 ही है। इसको हमें यहाँ से एक दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये 1458 हो गया। इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये भी 1458 हो गया।
इसको रिफ्रेश करने का तो ये भी 1458 हो गया। अब आपके डैशबोर्ड में सारी तब्दीली ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो गई है। तो स्टेप क्या है कि आपने एक दफा ये चीज बना के रख ली, बैकएंड पे आपका ओरिजिनल डाटा जो है, इसमें डेली डाटा कोई बंदा बैठा है वो इसमें डाटा एंटर करता रहेगा या डिलीट करता रहेगा, और आपकी जितनी मर्जी रिपोर्ट्स आगे बनी हुई हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। आपने डेली रिपोर्टें कोई नहीं बनानी। ये सिर्फ एक सैंपल है छोटी सी रिपोर्ट का। यहां तक क्लियर है सबको या नहीं? सर मैं डाटा एक जगह से जब कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर रहा हूँ तो वैल्यूज में पेस्ट हो रहा है, ऐसे टेबल नहीं पेस्ट हो रहा। आपने पूरी रो से कट करनी है यहाँ से, जी इसी तो तरह वो, कर रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं है। देखिए वैल्यूज भी पेस्ट हो गया है, तो जब आप वापस, अब देखो ये मैंने पेस्ट किया ना, ये वैल्यूज ही आई हुई है। अब मैं इसको कट करता हूँ वापस, यहाँ से कट करता हूँ, कट ओरिजिनल डाटा में जब मैं यहाँ पेस्ट करूंगा ना, यहाँ पे देखो वो ऑटोमेटिकली उसने उसको टेबल का पार्ट बना लिया है। टेबल यहाँ तक ही आया हुआ है, कटिंग में कोई गड़बड़ है। अब इस टेबल को हमें इसकी रेंज चेंज करनी पड़ेगी। इसको अगर मैं सारे को कंट्रोल ए करूं तो वो देखो वो नीचे वहां तक आया, पूरा टेबल नहीं उसने सिलेक्ट किया, ये यहाँ तक आ रहा है। ये इसको मैं पकड़ूंगा, ये देखो ये टेबल एक्सपैंड हो गया। ये देखो ये इसके अंदर वो आ रहा है ना, इसको मैं इसको टेबल बना दिया। ये देखो अब ये नजर आ रहा है, पॉइंट यहाँ तक आ गया है जी सुफियान। जी जी अब ये फिर वापस टेबल का हिस्सा बन गया। अब सही मैं हो इसको गया। सेव करता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश ऑल करता हूँ। अब मैं वापस जाके देखता हूँ, 1458 हो गया था ना। ये देखो ये वाला ऑटो रिफ्रेश हो गया, चार्ट वाले को हमें रिफ्रेश करना पड़ा है। ये फिर 1470 हो गया, ये भी 1470 हो गया, ये भी 1470 हो गया, और हमारा डैशबोर्ड भी 1470 वापस आ गया। सही है? ठीक है। और उस डाटे में अगर एक एडिशनल लाइन ऐड करेंगे, अच्छा ओरिजिनल डाटा में आ अभी तो जाता हमने हूँ मैं। डिलीट की है ना, अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा लाइन। इसे नीचे नीचे कोई आप जी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। जी 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 मैं करता हूँ ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये कंट्रोल सी, मैं ये नीचे डाटा ऐड कर देता हूँ। फर्ज करो इतनी रोज का, कंट्रोल वी, तो देखो उसने डुप्लीकेट, मैंने हाईलाइट किए थे, जी उसने डुप्लीकेट, ये रिपीट हो गया लेकिन डाटा डल गया। जी अब ये लेकर ये टेबल का हिस्सा नहीं बना फिर से, वो देखो ये टेबल का ऐसा ही। पार्ट नहीं है, टेबल उधर ही खत्म हो रहा है वहां पे। हम फिर क्या करते हैं, कंट्रोल ए, उसने टेबल वहां तक सिलेक्ट किया, देख रहे हो। जी मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से, इसे मैं कहता हूँ इसको टेबल का हिस्सा बना दो, छोड़ दे। ये देखो ये यहाँ पे डाउन एक एरो सा बना हुआ है ना, ये मैं इसको पकड़ता हूँ, ये देखो वो पूरा टेबल ड्रैग करके मैं उसके कहता हूँ ये टेबल का हिस्सा है, आ गया। जी या क्लियर है। अब मैं इसको करता हूँ डाटा, मैंने ऐड किया ना जो आप कह रहे थे, रिफ्रेश ऑल, मैं वापस आता हूँ। ये देखो 1496 हो गया, ये नहीं हुआ, इसको फिर हम रिफ्रेश करेंगे। 1496 हो गया, रिफ्रेश 1496 हो गया, रिफ्रेश 1496 हो जाएगा, डन। और आपका डैशबोर्ड भी अपडेट हो गया उसके साथ, ठीक है। ठीक है। अब अभी हमें तो 2:30 से 4:30 2 घंटे होने वाले हैं। यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताए, तो फिर मैं पावर क्यूरी के कुछ और फंक्शंस बताना चाहता हूँ। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताए, क्लियर है किसी सर। को नहीं,
किसी को कोई समझ नहीं आई तो मुझे बिल्कुल बताए, मैं दोबारा से बता देता हूँ। कोई चीज नहीं समझ आई तो मेक इट क्लियर, जितने लोग भी हैं एटलीस्ट इनको फायदा तो हो ना। डेटा थोड़ा सा ना वो होता है, टफ होता है, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, लेकिन जब इसका चस्का पड़ जाए ना तो फिर बहुत मजा आता है। तो ये इसका चस्का डालने की ये बड़ी मतलब अपने आप को ना थोड़ी मेहनत करानी पड़ती है। तो बहुत ही इसको ना कम लोग होते हैं जो इसकी तरफ आते हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस अभी लोगों को समझ नहीं आ रहे। तो फ्यूचर में इसके अभी अब लोगों को फीलिंग आएगी कि इसके क्या फायदे हैं। तो अभी तक अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछे, बिल्कुल डिटेल से पूछे। कोई हम 10-15 मिनट सवाल जवाब करते हैं, फिर मैं पावर क्यूरी के कुछ और फीचर्स बताना चाहता हूँ। ये तो अभी हमने सिर्फ एक स्टेप किया रिपोर्टें बनाने का। सर ये आपने चार्ट वगैरह जो इंसर्ट किया आपने किया पाइवट चार्ट से जाके, हाँ अगर जी, ये सिंपली आप यानी सिंपल चार्ट ऐड कर देना इस डाटा को सिलेक्ट करके, तो एक ही दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा, बार बार नहीं रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये डाटा को मैंने एक ही ट्राई, दफा रिफ्रेश करेंगे वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा फिर मैंने ये ट्राई नहीं किया क्योंकि मैंने उस डेटे से चार्ट नहीं बनाया, मैंने उसको पिवट चार्ट से बनाया था। तो वो पिवट चार्ट में ना आपके पास ऑप्शंस होती हैं। ये देखो, मैं यहाँ से अगर सादा चार्ट ऐड करूंगा ना तो मैं ये यहाँ से फिल्ट्रेशन मेरे पास नहीं आएगी। इसमें देखो मेरे पास फिल्टर है, मैं ह्यूमन रिसोर्स को फिल्टर कर सकता हूँ। ये देखो, अगर मैं सिंपल चार्ट डालूंगा ना तो ये पिवट चार्ट के फीचर्स मेरे पास खत्म हो जाएंगे, वो सिर्फ सादा चार्ट रह जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? जी ठीक। नहीं सर उसमें भी आता है साइड पे ना, ये फिल्टर की ऑप्शन में आ जाता है, उसका नीचे नहीं नजर आता, इस तरह नहीं शो होता, लेकिन साइड में फिल्टर आ रहा होता है उसका। अच्छा मैंने फिर ट्राई नहीं किया। ये चेक करें ना, ये हाँ ये आपका दूसरा है, उसमें भी साइड पे फिल्टर आ रहा होता है, उसमें 3 ऑप्शन आती हैं साइड पे, जैसे ये प्लस बना हुआ है नीचे पॉइंटर बना हुआ है ना, इसके नीचे तीसरी ऑप्शन फिल्टर की आ जाती है उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी करके चल, देख ले, 1 सेकंड लगेगा उसमें तो। उस मैं पर इसी इसी डाटे पे इसी पे क्लिक करें बस इसके ऊपर। इंसर्ट चार्ट, जी नॉर्मल ऊपर, ठीक है जी, क्लिक कर, ये बस ये फिल्टर देखिए आ, ये जी। हाँ ये भी आ गया, हाँ ये भी ठीक है। और इसमें एक ही ये भी दफा रिफ्रेश करेंगे तो सारा अपडेट हो जाएगा। परफेक्ट, ये भी बहुत अच्छी चीज होगी। ये मैंने ट्राई नहीं कभी किया था। ये इससे भी मतलब फिल्टर की ऑप्शन आ गई है, क्या फिल्टर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। डाटा को दूसरी तरफ सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ता, एज इट इज जो हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट बनी है उसी को ले लेगा। परफेक्ट, एक्सीलेंट, ग्रेट हो गया। किसी और का सवाल जी, कोई है यहाँ तक? सर अगर समराइज कर दें आप कंबाइन रिपोर्टिंग से थोड़ा सा, बिकॉज आई जस्ट स्टक एट अ ओके पॉइंट सो आई लेफ्ट इट। या ओके, हमने क्या किया है, पावर क्यूरी में हमने एक डाटा सेट को कनेक्ट किया था HR डाटा को टेबल और कॉलम से। फिर हमने ये 4 रिपोर्ट बनाई थी अलग अलग। जी जी फिर हमने क्या किया, हमने कहा ये तो सारी अलग अलग रिपोर्टें, इकट्ठी रिपोर्ट भी बना सकते हैं। हमने उसमें जब हमने उसको रिपोर्ट बनाई ना तो ग्रुप रो में हमने वहां पे सिर्फ एज ग्रुप लिया था, फिर बिजनेस ट्रैवल लिया था, डिपार्टमेंट लिया था, अलग अलग लिया था। जहां पे हमने 4 इकट्ठे कर दिए, यहाँ पे आप कोई और 5वां भी इकट्ठा कर सकते हैं, तो छठा भी इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। आप जितने मर्जी कॉलम्स ऐड करें उसकी एक रिपोर्ट बना सकते हैं। हमने इन चारों की एक कंबाइंड रिपोर्ट बनाई, ये वाली रिपोर्ट हमारे सामने नजर आ रही। अब इस डेटे को जब हमने एक्सेल में लोड किया है तो ये इस शक्ल में आ रहा है, कंबाइंड रिपोर्ट जिसका मैंने नाम रखा था। ये देखिए, लेकिन इसको पढ़ना मुश्किल है। अब इससे आपको आसानी से कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए मैनेजमेंट को कुछ की शक्ल होनी चाहिए। हमने उस शक्ल को बनाने के लिए एक डैशबोर्ड वाला ये टैब बनाया। ये देखिए, ये हमने 3 चार्ट्स बना ली हैं उन उन उस डैशबोर्ड से, जिसको हम अलग अलग से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता लग रहा है, आप देख रहे हैं, ये एज ग्रुप वाइज है, ये डिपार्टमेंट वाइज है, ये जी जी एजुकेशन फील्ड वाइज है। जी इसी तरह हम पूरे का पूरा का भी एक चार्ट बना सकते हैं पूरी रिपोर्ट का, डिपेंडिंग ऑन द हमारी रिक्वायरमेंट क्या है।
उस हिसाब से आप कंबाइंड रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक कंबाइंड रिपोर्ट बना के दिखाने की कोशिश की है कि ये चार चीजें अलग अलग की बजाय हम कंबाइंड भी बना सकते हैं, इसमें भी वही चीज आएगी, लेकिन उसकी चार लेयर्स ऐड होगी। कैसे? अगर मैंने देखना हो एज ग्रुप 18 से 25 में टोटल एम्प्लॉयज हैं 123। अब 123 एम्प्लॉयज में से मैंने देखना हो कितने एजुकेशन फील्ड में है, कितने डिपार्टमेंट वाइज हैं, तो यहां से तो नहीं देख सकता ना। जी ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये देखें, मैं यहाँ पे 30 एज फर्ज कर 18 से 25 सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ से देखना आसान है कि नॉन ट्रैवल सिलेक्ट कर लूँ। नॉन ट्रैवल में आगे मेरे पास ये देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ गया मेरे पास। नॉन ट्रैवल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये 5 और 7 और 4 11 लोग हैं। एक मेडिकल में है, एक 4 मेडिकल में है, 2 अदर्स में है, 5 इसके अंदर है। अब इसी डाटे को मैं यूज करते हुए मैं वो भी कर सकता हूँ, पिवट टेबल लगा सकता हूँ। फिर मैंने पिवट टेबल लगा के उससे जो भी मैंने काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस। ये मैंने कंबाइंड रिपोर्ट बना के दिखाई, ठीक है। हेलो, सही है। जी सर, अंडरस्टैंड, चलो आई कैन फॉलो या, थैंक यू। अच्छा, अब हम जाते हैं वापस। अभी हमने सिंपल काउंट का फंक्शन अप्लाई किया था, ठीक है, हमने सिंपल काउंट किया था। अब मैं क्या करता हूं, इसी पहली रिपोर्ट में जाऊं, यहां पे मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल है, मेरे से रिपोर्ट मांग ली गई है कि इस एज में जो टोटल एम्प्लॉइज हैं 123, उनकी टोटल इनकम सैलरी क्या है। मैं इसको बंद करता हूं, दोबारा से उधर से दिखाता हूं। ये ओरिजिनल डाटा में जब मैं आता हूं तो यहाँ पे एक कॉलम है कहीं पे इनकम का, मंथली इनकम, ये देखें, ठीक है, ये आ रही है जी हर जी बंदे हर बंदे की। अब मुझे एक उन्होंने कह दिया है कि ये जो रिपोर्ट तुमने बनाई है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मुझे बताओ इसमें इन इन 18 से 25 साल के लोग जो 123 हैं, हम उनको कितनी सैलरी देते हैं, मुझे वो भी बताओ। मेरे से सवाल पूछ लिया गया। अब मुझे सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो पावर क्यूरी में इसका बहुत आसान हल क्या है, मैंने ये रिपोर्ट बनाई हुई है, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और एज ग्रुप का काउंट आ रहा है। मैंने यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम्स में गया था, तो मुझे अब दूसरा क्या चाहिए, मंथली इनकम। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊं, मंथली इनकम को सिलेक्ट कर लूं, मैं माउस यूज कर रहा हूं, मैं कोई भी मैंने अभी तक टेक्निकल चीज नहीं की। मंथली इनकम किधर गई, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अभी देखिएगा ये मेरे पास उसी मेरी रिपोर्ट के अंदर मंथली इनकम ऐड हो गई है। जब मैं ग्रुप वाई में गया हूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्ट किए हुए थे सिर्फ। मैं यहाँ पे जाऊंगा इसकी सेटिंग में, एडवांस में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास मंथली इनकम भी आ गई, मैंने ऐड कर ली ना पीछे से। इसका मैं नाम रख देता हूँ टोटल सैलरी, लिख देता हूँ टोटल इनकम। ओके, और मैंने अब पहले मैंने क्या कराया था, काउंट। इनकम को क्या कराऊंगा मैं, फार्मूले में सम कराऊंगा या क्या कराऊंगा। सम। तो मैं इसको यहां से सिंपल मैं कहता हूँ सम कर दो। किस ग्रुप को, उसे कहता हूँ मंथली इनकम को। नाम मैंने कॉलम का रखा है टोटल इनकम, उसको कहा है जमा कर दो। कॉलम कौन सा, मंथली इनकम का। मैं ओके करता हूँ। सी, मेरे पास उस एज कैटेगरी में सारी सम आ गई। मंथली इनकम टोटल इनकम 2 दफा आ गई, 2 दफा आ गई। नहीं, ये मंथली इनकम टोटल इनकम हुआ क्या है, अगर मैंने एज ग्रुप, अच्छा सॉरी,
मुझे अब यहाँ पे दो कैलकुलेशनें करानी है। टोटल इनकम मुझे, चलो पहले इधर मैं लिखता हूँ, वो मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो चाहिए थे ना, वो मैंने उसको ओवरराइट कर दिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट रोज, मुझे ये चाहिए। मंथली इनकम दो दफा क्यों आ गई है, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये देखिए, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तुम इधर आ जाओ यार। सॉर्ट बराए, अच्छा वो नीचे किया हुआ था, दोबारा कर दी। ये देखिए जी, 18 से 25 में कितने लोग थे, 123 थे, और उनकी टोटल इनकम आ गई जमा होके। जी सर। अब इसी चीज को मैंने बाकी सारी चीजों में भी करना है। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं सिर्फ बिजनेस ट्रैवल पे जाऊंगा, रिमूव अदर कॉलम्स में मुझे बताएं मैं यहाँ से कौन सा कॉलम सिलेक्ट करूंगा। इनकम, मंथली इनकम। मंथली इनकम सिलेक्ट करूंगा। ग्रुप बाय में जाके मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊंगा, बिजनेस ट्रैवल में काउंट पहले निकला हुआ था, सब तो मैं लिख देता हूँ INCUM इनकम, ओके कर दूंगा। मेरी दूसरी रिपोर्ट में इनकम आ गई। मैंने मतलब सिर्फ एक एक स्टेप कर रहा हूँ, मुझे जीरो से कोई रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ेगी। मैं इसमें भी गया हूँ, मैं इसमें भी वो कॉलम ले आऊंगा, माउस के साथ ही मंथली इनकम का कॉलम, मंथली इनकम मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे भी मुझे मंथली इनकम वाला कॉलम चाहिए, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, सिंपल सम करा दो मंथली इनकम को और इसका नाम रख दो इनकम, वो भी आ गया। इसी तरह आप एजुकेशन फील्ड में भी कर सकते हैं। कंबाइंड रिपोर्ट के अंदर भी अब यहाँ पे जाते हैं, अब इसी में जाते हैं, रिमूव अदर कॉलम हम कर चुके हैं, इसमें भी मंथली इनकम कंबाइंड में भी लेके आते मंथली इनकम, ओके। और इसमें आके हम उसको कहते हैं, इनकी भी सम करा दो मंथली इनकम और इनकम। सी, ये इंडिविजुअली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है एक्सेल में, हर एक जगह फार्मूले लगाने पड़ते हैं, सम इफ लगाना पड़ता है, ये 4 कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। अगर आपने एक्सेल में लगाई हो तो उसके अंदर ना ये बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके यू कैन डू एनीथिंग, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास जब मैं इसको लोड करता हूँ सी, वही रिपोर्टें अपडेट हो जाएंगी विद अपडेटेड कॉलम्स। चलो जी, मैं पहली पे आता हूँ, आगे जी इसके साथ इनकम। सर एक इश्यू ये आ सर रहा है क्लियर हो मुझे। गई। क्या? मेरा सारा डाटा ब्रेक हो जाता है एज का, लाइक फिल्टर्ड ग्रुप में रहता है 8 to 25, एक इंडिविजुअल काउंट को लेके लाइक इंडिविजुअल एज के हिसाब से उसको एज ग्रुप एम्प्लॉय वाइज ऐड करता है। यहाँ नहीं जैसे ये आपके पास 5 फिल्टर आ रहे हैं ना, मेरा ये एक इंडिविजुअल एज एज एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर उसकी जो एज वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसको एज अ लिस्ट इंडिविजुअल कर रहा है, यानी कि मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, कोई लेट्स से आपने 1400 फील्ड समथिंग। आपने एज सिलेक्ट की होगी, एज ग्रुप सिलेक्ट करना, एज ग्रुप सिलेक्ट करना, कैटेगरी आपने एज सिलेक्ट कर ली। एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम तब आता है जब मैं इनकम का सम लेके आता हूँ, वो वाला एग्रीगेशन ऐड करता हूँ नीचे, तो उससे पहले किस नहीं होता। किस वाली रिपोर्ट में? यही जो हम जिस रिपोर्ट में हम काम कर रहे हैं कि इसमें एज ग्रुप बनाया पहले, इसके अंदर आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लिए, सम आ गया था हर एज ग्रुप अब का। एक काम करते हैं ना, ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मैच करें आप मेरे साथ, मुझे जी बताएं कहाँ पे मिसमैच है। ये एज ग्रुप है, जी पहला यहाँ पे स्टेप है। हाँ जी,
यहाँ पे ये आपके पास 5 कॉलम्स है ना हर एक ग्रुप के लिहाज से। मेरे पास ये 14 से समथिंग पूरी वो एक इंडिविजुअल आ रही है, हालांकि मैंने एज ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। सो मैं आपके अच्छा, साथ रिपीट करता हूँ दोबारा, आप कंटिन्यू हाँ, करें। आप ये देखिए सोर्स में पहले आपके पास ये सारा ऐसे ही आ रहा है, सारी की सारा डाटा आना चाहिए पहली चीज। यस फिर उसको चेंज रिमूव्ड अदर कॉलम्स पे पहुंचे आप, आपके पास ये 2 कॉलम आ रहे हैं। जी, मंथली इनकम और एज ग्रुप आ रहा आ गया। अब है। इसको मैंने सॉर्ट भी कराया हुआ है बाय एज ग्रुप, आप सॉर्ट करा लो जरा। जी अब आप ग्रुप रोज पे आओ, इस पे इसकी सेटिंग पे क्लिक करो और अब सेटिंग देखो ये मेरे से मैच कर रही है। यहाँ पे एज ग्रुप ऊपर सिर्फ होना चाहिए। यहाँ जी पे मैंने आपने, हाँ मैंने या सही, मैंने सॉर्टिंग इसमें मिस कर दिया, मैं उसको ऐड कर लूँ फंक्शन। यानी सॉर्टिंग से कुछ नहीं होगा, आप कर लो। ओके आपने ओके यहाँ पे एरर किया, ग्रुप बाय में एरर है आपका, वो मैं बताता हूँ। जी। ग्रुप बाय में एडवांस में जाके एज ग्रुप सेलेक्ट किया है और सेकंड मैंने सेलेक्ट किया है मंथली इनकम। नहीं करनी ओके ये, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे नहीं करनी, वो नीचे करनी है। ऊपर सिर्फ वो चीज आएगी जो हमें चाहिए, नीचे कैलकुलेशन है, वहां पे 2 चीजें ऐड करो। ये देखो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, जी इस स्क्रीन में देखो नीचे वाली 2 चीजें, ऊपर जी। सिर्फ ऊपर एज एक है, ग्रुप है। ठीक है, मैं ये उधर गलती कर दी। इस वजह से वो क्या कर रहा है कि वो ऊपर भी डबल कर रहा है, नीचे भी डबल कर रहा है। करेक्टेड, थैंक यू वेरी मच। हो गया। जी सर, हो गया। चलो, रिपोर्ट अब आपकी एंड पे ये इस तरह से नजर आनी चाहिए, यही वाली। जी ऐसी आ रही है 36,000 33,000 समथिंग, 36,000 समथिंग जो भी नंबर आ। बस ठीक हो गया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जी गया ना जी कि जो चीज देखो, एक अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स जब इसके प्रोसेस में जाते हैं ना, इनको कहते हैं डायमेंशंस एंड मैट्रिसेस। जिस तरह पिवट टेबल में होता है ना रोज एंड कॉलम्स एंड वैल्यूज, इसी तरह ये जो चीज हमने रोज में डालनी होती है ना, वो हम ऊपर रखेंगे, जिस पे हमने कैलकुलेशंस करानी है वो नीचे रखेंगे। तो हम आपने क्या किया, ऊपर भी 2 रख लिए, नीचे भी 2 रख लिए, तो उसने वो दोनों के साथ रिपीट कर दिया। गलत जी नहीं था लेकिन रिपीट हो गया। या अब आप ये 2 कॉलम है और एक सिंगल कॉलम है टेक्स्ट कॉलम, और ये दोनों एग्रीगेशन के कॉलम है, तो उसने कर दिया, तो अब आपने कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। जी क्लियर। बाकी लोग मैंने अभी तक मेरे लिए एक बड़ी अच्छी चीज है, मिस क्लियर रुबीना के साथ हमारे पास मिस दानिया, इरम और लबिका है। आप लोगों ने ये स्टेप्स किए हैं, प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए बड़ी अच्छी न्यूज है कि फीमेल्स आर आल्सो इनटू दिस। ओके, तीसरी जो थी मुझे नाम भूल गया, वो भी अब मुझे बताएं जी। आपने भी कर लिया, एक और नाम था, दानिया, लाबिका, इरम। इरम आपने भी कर लिया शायद वो। बट आई एम परफॉर्मिंग ऑल दीज स्टेप्स इन कोई बात नहीं, पावर क्यूरी और पावर बीए दोनों एक ही चीज है। लेकिन ये है कि पावर क्यूरी से आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पावर बीए में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पावर बीए में आप उसी के अंदर टेबल के अंदर रहना पड़ेगा, आप एक्सेल में नहीं ला सकते। इसलिए पावर क्यूरी में कराया, आपको पावर बीए के अंदर ही रहना पड़ेगा और टेबल कॉपी करके बाहर लाना पड़ता है। नहीं नहीं, नो इशू इरम, मैंने सिर्फ पूछना था, माइक की बात नहीं है। जस्ट आपने कर लिया, इट्स ओके। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोग अभी डाटे पे आप लोग रुके हुए, ये भी बड़ी बात है। मर्दाना पार्टी तो चलो, मुझे पता है कि उनकी मजबूरी होती है कि हम लोगों को डाटे पे काम करना पड़ता है। दिस इज वेरी एनकरेजिंग, यू पीपल हैव डन दिस। चले जी, अच्छा जी, अब हम आपको और चीज मैं बताता हूं। इसी डाटा के अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर ना बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल है। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ये देखें, डेट जो है आपके पास इस फॉर्मेट में आ रही है ये। अब इस डेट से मैं कुछ भी करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, दिस इज वेरी इजी। पहला स्टेप, मैं यहां से ये जो आइकॉन बना हुआ है, कैलेंडर सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूं। यहां से मैं इसका कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकता हूं। मैं अभी डेट और टाइम आ रहा है, मैं इसे कहता हूं डेट में कन्वर्ट कर दो। सी, with one click I am able to change the format
जो कि मुझे एक्सेल में करने के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। पहला स्टेप। अब मेरे पास एक डेट बन गई है, अब उसको आप इररिस्पेक्टिव ऑफ डाटा देखें, अब इस डेट से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहला स्टेप करते हैं स्प्लिट कॉलम। मैं इस कॉलम को, किसी भी कॉलम को बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, लोअर टू अपर केस, अपर, एक डाटा क्लींजिंग के लिए सारी चीजें काम आती है। डिजिट टू नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट, सारी सेपरेटिंग कर सकता हूँ। ये रिक्वायरमेंट होती है पर्पस टू पर्पस बेस्ड। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ 25, 5 और 2024, मुझे ये 3 कॉलम्स में चाहिए, ये डेट्स 3 कॉलम्स में चाहिए। तो कैसे करूंगा? मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल। मैं ऐसे कहता हूँ बाय डेलीमीटर, बाय डिफॉल्ट उसने डेलीमीटर ये उठा लिया। मैं ऐसे कहता हूँ ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, जहां जहां पे ये डेलीमीटर फॉरवर्ड स्लैश आ रही है, मुझे स्प्लिट करके 3 कॉलम बना दो। सी व्हाट हैपेंस, आई क्लिक देयर, वो कॉलम 3, 1 2 3 चीजों में कन्वर्ट हो गया। उसने उसी को डेट 1 डेट 2 से कर दिया। ये मुझे एक्सेल में स्प्लिट का प्रॉपर फंक्शन बनाना पड़ता है, फिर जाके मैं काम कर पाता हूँ। एक चीज आपने देखी कि आप इस चीज को, किसी भी चीज को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। मैं इसको खत्म करता हूँ, वापस मैं अपने ओरिजिनल कॉलम पे आ गया। दूसरी एग्जांपल है, इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, इसको डेट पे फॉर्मेटिंग का हम नहीं करते, इसके ऊपर मैं एक चीज करता हूँ। देखें, फर्ज करें, ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ तो नहीं हो सकती 2024, फिर भी चलें, मैंने कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास कोई भी डेट का कॉलम है ना, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी थी मेरा ख्याल, ठहरे, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ, मंथली सैलरी, marital स्टेटस, जॉब रोल, जेंडर, एम्प्लॉय काउंट, एजुकेशन, डेली रेट, नहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं है, एज आ रही है। चले कोई बात, डेट के कॉलम पे अब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, इससे आप ये सारी चीजें निकलवा सकते हैं सिर्फ क्लिक करने से। क्लिक करने से क्या मुराद है, आप देख, इसमें से आपको ईयर चाहिए, एक नए कॉलम में बहुत सारी कैलकुलेशंस में ना जब चार्ट बनाते हैं तो चाहिए होता है। आप ईयर पे क्लिक करेंगे, वो ईयर दे सकता है, स्टार्ट ऑफ ईयर दे सकता है, एंड ऑफ ईयर दे सकता है, इस डेट के बीच आपने जस्ट क्लिक करना है, वो फार्मूले खुद लगा के आपको बना देगा। सेम इज द फॉर मंथ, मंथ है, स्टार्ट ऑफ द मंथ क्या है, उस मतलब जो भी डेट है उस महीने का स्टार्टिंग डेट दे देगा, एंड ऑफ द मंथ, डेज इन मंथ्स दे देगा। नेम ऑफ द मंथ चाहिए तो वो भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, नेम ऑफ द मंथ उसने कह दिया कि मे, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सॉरी, मैं कहता हूँ ऐड कॉलम, इसको ये कॉलम भी चाहिए मुझे, वो इसी को चेंज करी जा रहा है। यहां से मुझे इसका नेम दे दो। ये देखिए, आपको बहुत सारे चार्ट्स में ये जरूरत पड़ती है। ये डेट है और इसमें से महीना बाहर निकल के आ गया मई, इसी में से मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐड कॉलम ईयर, मैं कहता हूँ ईयर दे दो मुझे। देखें, मेरे पास यही डेट का मई भी आ गया, ईयर भी आ गया। मैं ऐसे कहता हूँ इसमें से मुझे दिन भी दे दो, डे दे दो। कौन सा दिन है डे? ये देखें, 25 मई 2024 था, तो मैंने 3 कॉलम बना लिए। 25 मुझे डेट अलग मिल गई है, ईयर अलग मिल गया है और महीना अलग मिल गया। ये 3 चीजें कट कर सकता हूँ इससे। इसके अलावा मैं इसमें से, इस डेट में से, इसके जितने डेट के फंक्शन है ना, वीक, मुझे देखना है। एग्जांपल, ये जो डेट है किस वीक ऑफ द ईयर में आती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 21वें, ये जो 25 मई बन रही है ना, ये 21वां हफ्ता है। और एक्सेल में हमें ये सारी चीजें बनाने के लिए ना फार्मूले सारे लिखने पड़ते हैं, ये बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकते। इसी तरह मैं अगर अगर इसी डेट को, इसी को ले लूं, तो मैं इसके ऊपर ये सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकता हूं। आप इसको खुद अप्लाई करके देख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये तो होगी डेट कॉलम के ऊपर। अब एक चीज पे आ जाते हैं, एग्जांपल लेता हूं, मैं ले लेता हूं, ये ले लेते हैं डिपार्टमेंट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है।
बहुत सारी जगहों पे आपके पास ना ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा नहीं होता, मतलब आर ये तो अभी प्रॉपर लिखा हो ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपने इसको सबको आप कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो आप अपर का फार्मूला लगाते हैं। इसमें आप फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं ऐड कॉलम में जाके कहता हूँ कि डिपार्टमेंट का नया कॉलम बनाओ, या इसी कॉलम को करके देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट, ये देखिए मैं ऐसा कहता हूँ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर केस में लिखा हो, मुझे कैपिटल में चाहिए। फॉर्मेट अपर केस वो देखें एक क्लिक पे सारे का सारा डाटा अपर केस में ट्रांसफर हो गया है, ये सारे का सारा। आप इसके साथ इसको, इसमें कोई ऐसी स्पेसिस आ जाती हैं जो कैलकुलेशन में गड़बड़ करती हैं, आप ट्रिम भी करा सकते हैं, क्लीन भी करा सकते हैं, एक और काम भी कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है पहले था वो दोबारा से ये देखिए वही हो गया। एक और चीज बात जगह पे होता है कि नाम यहाँ पे आ रहे हैं, नाम 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 नहीं आ रहे। फर्ज करें बात जगहों पे होता है आपने प्रिंट लेना होता है, लेटर लिखने होते हैं, मेल मर्ज करना होता है, तो आपने मिस्टर का वर्ड लगाना होता है पहले। मैं यहाँ पे किसी के साथ लगा कर देखता हूँ, फर्ज करें ये सिंगल है, नहीं मेल फीमेल पे लगाता हूँ, मेल फीमेल है कि नहीं, जेंडर थी कहीं पे, ये देखिए इस पे मैं लगाता हूं कि चले अभी स्टैंडर्ड लग जाएगा, स्टैंडर्ड लगाता हूं, दूसरा मैं आपको फार्मूला लगाना सिखाता हूं। एड प्रीफिक्स, मैंने इससे पहले फर्ज करे लगाना है मिस्टर, MR मिस्टर डॉट, देखिए इससे क्या होता है, सबसे पहले मिस्टर लिखा गया, आपको ये फार्मूले बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा कुछ बाय डिफॉल्ट है। एड प्रीफिक्स पहले मैंने ऐड किए, ये स्टेप डिलीट कर देता हूं। इसी तरह मैं ऐड सफिक्स एंड पे भी ऐड कर सकता हूँ, फर्ज करें मिस्टर ही ऐड करता हूँ, तो एंड पे मिस्टर लिखा, वो मैंने डॉट नहीं डाला तो वो आ गया। तो आप अपने डेटे को बिफोर कन्वर्टिंग टू एनालिटिक्स आपने पहले ये सारे इसकी नॉर्मलाइजेशन करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी मैं आपको समझाऊं, शायद समझ ना आए, पिवट और अनपिवटिंग होती है। आप लोग जितने कभी 17 लोग मेरे साथ हैं इंक्लूडिंग मी, मेरा ख्याल है ये सारे वो लोग हैं जो एक्सेल पे काम करते हैं, इसलिए अभी तक मेरे हमारे साथ हैं। तो आपको पिवटिंग और अनपिवटिंग तो आती है, लेकिन ये आपको थोड़ा कंफ्यूज जो हो जाएगा, ये मैं फिर अभी आपको नहीं बताता, बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, इसमें अब आपको और चीजें आपने जो स्टेप्स करने हैं, आपने इसमें एक रिपोर्ट बनानी, वो पहले तो आपने रिपोर्ट बनाई ना ग्रुप बाय करके कोई करके, आपको एक बंदा कहता है कि इसी की एक रिपोर्ट बनानी है सिर्फ फीमेल स्टाफ की, एक रिपोर्ट बनानी है मेल स्टाफ की। आप इस डाटे को डुप्लीकेट करो, सिंपल, यहाँ पे जाता हूं मैं जेंडर में, यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं ओनली फीमेल्स, ओके, ये मेरी फीमेल्स की रिपोर्ट तैयार होगी। अब जब मर्जी पीछे से डाटा अपडेट होगा, ये मेरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली फीमेल की ही रहेगी। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूं अगर, और ये वाला फिल्टर जो है इसको मैं कन्वर्ट कर दूं फीमेल की बजाय मेल, तो मेरी मेल्स की रिपोर्ट बन गई। मेल की रिपोर्ट बन गई, मैंने सिर्फ सिंपल स्टेप्स किए, मतलब मैंने फिल्टर लगा दिया। अब बाय डिफॉल्ट जब भी नया डाटा आएगा और उस डाटा सेट में जेंडर चेंज होगी तो मेरी ये फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं जो चीज चाह रहा हूं, कंडीशनल, एक कंडीशनल चीज में भी आपको बताना चाह रहा हूं,
ताकि आप लोगों को उसका भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप करना चाहते हैं। एक और चीज भी बता दूं, ये मेल फीम अब ओरिजिनल डाटा पे आ जाता है। ओरिजिनल डाटा में आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। ये फर्जन मंथली इनकम है, आपने साल की इनकम निकालनी है। साल की इनकम निकालनी है तो क्या करेंगे, इस इनकम को क्या करेंगे, सादा सा फार्मूला होगा, क्या बनेगा आपको बता सकते हैं एनीवन? मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, जो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है तो हमें वो करना कितना आसान है। मैं ये कॉलम सिलेक्ट करूंगा, ऐड कॉलम में जाऊंगा, इसमें स्टैंडर्ड फंक्शन बने हुए हैं। मैं कहूंगा मल्टीप्लाई, कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई। मैं इसको करता हूँ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, फिक्स। अब देखना, ये मेरे पास एनुअल इनकम 1 सेकंड में आ गई और हर रिपोर्ट में आ गई है। मुझे कहीं पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास ये आ गई है, मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ये एनुअल इनकम बन गई। सही है। इसी तरह आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं किसी चीज के लिए। अब एग्जांपल ले लेता हूं, जो मंथली इनकम है मैंने वो देखना है टोटल इनकम का कितने परसेंट है। एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं मंथली इनकम डिवाइडेड बाय ईयरली इनकम। मंथली इनकम किधर है, आगे ये मंथली इनकम। मैं करूंगा ये कॉलम सिलेक्ट, कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड फंक्शन में मैं उसे कहूंगा डिवाइड करा दो। चेक करें, ये देखो उसने परसेंटेज निकाल दे दी। मैं इसको यहाँ से सिंपल इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, वो 8.33% उसने 1 सेकंड में हर वैल्यू के अगेंस्ट हर बंदे की वो निकाल के दे दी है। वो क्योंकि हमने 12 से स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई किया था तो हर एक का वही जवाब आ रहा है। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइंटिफिक सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं जो आपको चाहिए। यू कैन डू वॉट एवर डन। दूसरी एक और चीज, डुप्लीकेट रिमूवल। डुप्लीकेट, आपने कॉलम डुप्लीकेट करना, बल्कि यहाँ पे एक था मैं आपको वो भी बता दूं। आप पूरे डाटे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए, और यहाँ पे होम में होता है रिमूव रोज। आप ये 5 के 5 स्टेप कर सकते हैं। कैसे, टॉप रोज कितनी डिलीट करनी है, बॉटम रोज कितनी डिलीट करनी है, हर ऑल्टरनेटिव रो डिलीट करनी है, डुप्लीकेट रोज डिलीट करनी है, ब्लैंक रोज डिलीट करनी है, या एरर्स रिमूव करने हैं। इसी तरह कौन सी रोज रखनी है, अब ये सारे रोज के फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल जवाब लेता हूं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मर्ज क्यूरी है और पेंड क्यूरी है। ये मैं आपको बताता हूं और मेरा ख्याल ये फीचर आपको समझ आना बहुत जरूरी है। बल्कि इसकी बजाय मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाह रहा था, ये मेरे जहन से निकल गई। इसको मैं क्लोज करता हूँ। पहले मैं 10-15 मिनट आप लोगों से इसके ऊपर सवाल लेना चाहता हूँ, फिर मैं एंड पे ना आपको एक फीचर सिखाना था, वो मेरे जहन से निकल गया। अभी मैं पहले वो सिखाऊंगा, ये वाला फिर मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इसको मैं करता हूँ क्लोज, कीप। अब इस पे मेरे से कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज पूछें। फिर आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पावर क्वेरी सिखाता हूँ जो मैं भूल गया, जो मैंने सोचा था सिखाया और मैं भूल गया। अब इस पे कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनीवन। सर आई थिंक सो कि पेंड क्यूरी जो है हम यूज करते हैं टू टेबल्स को मर्ज करने के लिए, लेकिन उनका जो है कॉलम जो हेडिंग है वो सेम होनी चाहिए। हाँ जी, मर्ज क्यूरी और पेंड क्यूरी में फर्क ये होता है कि पेंड क्यूरी ये होती है कि आपके पास डाटा मौजूद है, कॉलम सेम है, आपने नीचे डाटा पेस्ट करवाना है तो आप उसके नीचे पेंड करते जाते हैं। मतलब A+B+C+D के कॉलम सेम है लेकिन रोज बढ़ रही हैं। मर्ज क्यूरी में ये होता है कि आपकी रोज उतनी रहती हैं लेकिन कॉलम्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम एक्स लुकअप और वी लुकअप और
ये हॉरिजेंटल एच लुकअप, वी लुकअप और एक्स लुकअप कहते हैं ना, ये सारी वो चीज है। लेकिन मैं सर जॉइंट्स वगैरह लगा सकते हैं मर्ज क्यूरीज हाँ में। जी हाँ जी, ये ज्वाइंट्स ही हैं, ज्वाइंट्स ही हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन मैंने ना कंसोलिडेशन सिखानी है, वो आखिरी स्टेप है, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। बड़ी मुश्किल से आप लोग मेरे साथ अभी तक रुके हुए हैं। मुझे यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो खुल के पूछ सकता है, यहाँ तक समझ आई है। बेसिक्स तो मैंने आपको बता दी है, चला दिया है। बाकी यूट्यूब भरा हुआ है, इससे आप किस तरह फायदा ले सकते हैं। मेरा चैनल भी पड़ा हुआ है मेरे नाम से, उस पर भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई हुई हैं, वो पड़ी हुई हैं। आप लोग वैसे खुद से भी पावर क्वेरी को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी जिंदगी सुकून में आ जाती है। हम कोई डेली की 700-800 रिपोर्टें बनाते हैं जो पावर क्वेरी से ऑटोमेटेड है, और हमें कोई कुछ नहीं करना होता, हम बटन दबाते हैं, वो सारा कुछ खुद ही होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग भी बटन दबाएं और एंजॉय करें, ये आप काम सीख सकते हैं अगर आप करना चाहें। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। कोई सवाल नहीं है जी, किसी का कोई सवाल नहीं? सर ये बताएं कि डाटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट का क्या स्कोप है आगे फ्यूचर में, और जॉब्स कैसे फाइंड करें इसके रिलेटेड। यार आप सिर्फ पावर क्यूरी के एक्सपर्ट हो जाओ, सिर्फ पावर क्यूरी के एक्सपर्ट हो जाओ, 1.5 से 2 लाख रुपए की नौकरी तो हंस के मिलती है। मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ आजकल, मेरे बंदे ने रिजाइन दे दिया, मुझे पावर क्यूरी का एक्सपर्ट बंदा चाहिए, साथ में हल्का फुल्का उसको एनालिटिक्स आना चाहिए। तो हमारी बिल्कुल फ्रेश बंदा जिसकी मैंने अभी इंटरव्यू कल किया है, उसका कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन उसने ये पावर क्यूरी और पाइथन पे हल्का फुल्का काम किया हुआ है। तो मेरी नेगोशिएशन उससे शुरू हुई है, तो उसने 1,20,000 मांगा था, तो मैंने उसको 90,000 ऑफर किया। ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ। जो 1 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ना जिसके पास, ये डाटा एनालिस्ट के पास, वो 1.5 से 2 लाख रुपए से नीचे बात ही नहीं सुनता। और इसकी और एग्जांपल बता देता हूँ, मेरे पास पिछले साल एक लड़का था, मैंने रखा था उसको, वो 54,000 में किक स्टार्ट में था, मैं मालम रोड पे। वो वहां से मैंने उसको उठाया यहाँ पे 70,000 पे। उसकी पहली इंक्रीमेंट लगी तो मैंने उसकी सैलरी करवा दी 87 समथिंग, 85,000, यानी किक स्टार्ट वाले की 87,000। वो 1 साल उसने मेरे साथ काम किया मेरी टीम में, और वो दूसरी जो उसका जंप लगा है वो, क्योंकि उसने हमारे साथ ये काम सीख लिया था, तो 1,80,000 70,000 पे गया है वो। और उसका टोटल एक्सपीरियंस अभी मेरा ख्याल 1 साल का हमारे साथ हुआ था। उससे पहले मैंने एक लड़का रखा था, उसकी सैलरी मैंने ज्वाइनिंग पे 85,000 रखी थी, क्योंकि वो पीछे 60,000 ले रहा था। मेरे पास आया, उसने मेरे से 1.5 साल काम सीखा, तो उसने पहला जो जंप लिया, आप परेशान हो जाओगे सोच के, क्योंकि वो हमने उसको थोड़ी ऑटोमेशन भी सिखा दी। तो यहाँ से डायरेक्ट एयरफोर्स वालों ने उसको उठाया, वो इस्लामाबाद गया 2.5 लाख। तो वहां पर भी 6 महीने 7 महीने काम किया उसने, तो अब वो 3.5 लाख पे बैठा हो। फिर मैंने एक बंदा रखा, वो पीछे बैठा मेरे, अभी मैंने इसको ट्रेन ही रखा था 6 महीने, इसको ट्रेन किया है। फिर ये 6 महीने वो इसको परमानेंट किया था। अभी इसकी कंफर्मेशन की है मैंने, लास्ट मंथ साइन किए हैं मैंने कंफर्मेशन के। ये बच्चा, इसने सिर्फ अभी एजुकेशन भी पूरी नहीं है, अभी वो 14 साल वाली एजुकेशन की है, साथ इसने ये सारी चीजें हमारे साथ भी सीखी, कुछ खुद भी सीखी। 30,000 पे इसको मैंने ट्रेन ही रखा था, 6 महीने बाद इसको कंफर्म किया 70,000 पे। अभी इसको कंफर्म किया तो भाई साहब ने इंटरव्यू दिया, और अभी 1,04,000 पे बैंक अल्फला जा रहा है। कोई बंदा टिकता ही नहीं हमारे पास 6 महीने साल से ज्यादा। अभी सिर्फ हम उसको ये पावर क्यूरी सिखाते हैं और ये डैशबोर्ड बनाना सिखाते हैं। अभी मेरे पास इस्लामाबाद में जॉब आई हुई है, उन्होंने कहा बिजनेस एनालिस्ट चाहिए 1 से 1.5 लाख रुपए। अभी मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उन्होंने कहा हुआ 2 लाख रुपए तक सैलरी देंगे, अपना ट्रेंड किया बंदा दे दे, वो बिजनेस एनालिस्ट हो, उसको आप ये जो आप काम करते हैं ये काम आना चाहिए, उसको हम 2 लाख रुपया देंगे, डिप्टी मैनेजर की पोजीशन है डाटा एनालिटिक्स की। आप बताओ, आप क्या फील है आपका?
सर मैंने अभी कोर्स किया है पावर बीआई का ना, अभी मेरे कंप्लीट हुआ है, PNY अल्फा क्रीम टावर्स। तो दैट्स ब्रिलियंट। लेकिन पावर बीए में इशू ये है कि आपने पावर पी उसमें पावर क्यूरी डेक्स वैक्स सब सीख लिए होंगे, लेकिन पावर बीए के इशू ये है कि डेस्कटॉप वर्जन पे आपने काम किया होगा, पावर बीए सर्विस पे भी कराया उन्होंने काम। वो एंड में बस बताया था, लेकिन डेस्कटॉप पे ज्यादा काम करा है। हाँ वही मसला यही है जी लैबिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे पास इतनी जॉब्स आती हैं बिजनेस एनालिस्ट की कि मेरे पास बंदे नहीं होते, तो मैं फिर पर्सनल ट्रेनिंग्स करा रहा होता हूँ कि वो बंदे ट्रेन हो जाए तो फिर मैं किसी को रेफर कर सकूँ। तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं, अगर आपको एनालिटिक्स नहीं आते आपकी जॉब खतरे में। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई तो थी, हमने खोली नहीं। आपको एक चीज दिखाता हूँ, बीआई के साथ एआई भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आप ये स्क्रीन देखें, ये जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है ना, नजर आ रही है प्रेजेंटेशन जी? प्रेजेंटेशन नजर आ रही है जी। ये देखें, मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई। सी, ये जितनी भी प्रेजेंटेशन बनी है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। मैंने आप लोगों से ये शेयर भी कर दूंगा, मैं इसको दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर देंगी। ये कैसे बनाई थी, ये इतना कुछ मैं तो नहीं, इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं बना सकूं, और ना ही मेरे को डिजाइन सेंस इतनी अच्छी है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, यू विल गेट एन आइडिया, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर भी सकते हैं। मैंने एक पोस्ट भी बना के लिंक्डइन पे अपने डाली थी कि आप अपनी चीजों को जब तक स्मार्ट नहीं करेंगे ना, यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फ्री वाले वर्जन से ही देख लें आप। मैं यहाँ पे आता हूँ, आपने कुछ नहीं करना है, आप जाएं GAMMA गामा प्रेजेंटेशन, ये वेबसाइट है, इस पे आप एआई प्रेजेंटेशन पे जाएं। मेरा अकाउंट बना हुआ है, लॉग इन कर लेता हूँ। अब आप देखें कि अगर लोगों को आजकल ये चीज नहीं आएगी तो वो कितना मतलब पीछे होंगे। ये देखिए क्रिएट न्यू, मैं क्लिक करता हूँ, इसमें फ्री वर्जन है, मेरे पास पेड भी है। मैं फ्री वाले में दिखा रहा हूँ, तीन चीजें हैं, आप टेक्स्ट दे दें इसको, इसको एआई से जनरेट करा लें, या कोई बनी बनाई प्रेजेंटेशन दे दें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ जनरेट, वो मुझे तीन ऑप्शन देता है। प्रेजेंटेशन बनानी है, अब आप सोचो वेबसाइट, एक बटन पे वेबसाइट बन जाती है, सिर्फ मैंने इसको प्रॉम्प्ट देना, पूरी वेबसाइट बना देगा। आपको दिखाता हूँ बना के। कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चैट जीपीटी की तरह, ये मैं अभी प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं ऐसे सिंपल प्रेजेंटेशन कहता हूँ, डिजाइन से डिजाइन ऑफ 1 डे TRAI ट्रेनिंग ऑन एक्सेल, एग्जाम्पल ले लेते हैं, EXEL। मैंने सिर्फ वन लाइन में प्रॉम्प्ट लिखा है जनरेट। देखना ये सारी, इसने 8 फ्री में आपको स्लाइड्स बना के दी है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एआई इमेजेस चाहिए, डिटेल्ड स्लाइड्स चाहिए, और मुझे इमेजेस बना दो फास्ट फ्लक्स के थ्रू। ये बैकएंड पे एआई टूल्स होते हैं। कंटिन्यू। अब आपने देखना है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू डेवलप। मैंने यही वाला थीम मुझे पसंद है, फर्ज करें मैं उसे कहता हूँ मुझे यही थीम पसंद है, जनरेट कर दो। जब आपके सामने देखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो रही। ये जो मैंने आपकी प्रेजेंटेशन बनाई है वो मैंने ऐसी बनाई, लेकिन ये है कि मैं एक्सपर्ट हूं तो मुझे पता है कि मैंने चीजें क्या डिजाइन करनी है। अभी आपके सामने देखिएगा आउटपुट क्या निकलती। मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, ऐसे प्रेजेंटेशंस रेडी करता हूँ। जिस तरह अभी प्रेजेंटेशन रेडी थी, लेकिन काम सारा प्रैक्टिकल आपको करवा दिया, प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन प्रेजेंटेशन साथ फिर बाद में शेयर कर देता हूँ ताकि लोगों को हेल्पफुल हो जाए। इसी तरह इसका डॉक्यूमेंट भी रेडी हो जाता है। अभी आप देखिएगा ये कंप्लीट होती है ना। अब जिन लोगों को ये चीजें नहीं आएंगी तो फ्यूचर में उनका क्या फ्यूचर होगा। हम लोग भी अब वो लोग हायर करते हैं जिनको
कम से कम ये टूल यूज करने आते हैं। अगर उनको टूल ही यूज करना नहीं आता, हमने उसको रख के करना क्या, फायदा ही कोई नहीं हमें उसका। ये देखें जी, उसने प्रेजेंटेशन डन कर दी। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये देखें, एक्सपोर्ट करूंगा मैं, पीडीएफ में कर लूँ, पावर पॉइंट में कर लूँ, या इसके इमेजेस बना लूँ। मैं कहता हूँ मुझे एडिटेबल वर्जन बना दो ताकि मैं इसको यूज कर लूँ। आप लोग अपने अपने जहाँ पे भी ऑफिस में काम करते हैं, तो ये चीजें आपको अगर नहीं आती ना, तो आप अपना काम बहुत लंबा, ये देखें कितना टाइम, इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन कम से कम मैं तो नहीं बना सकता कि एक हफ्ते से पहले। मुझे तो ये डिजाइन नहीं बनाने आते ना कलर। ये कप कहाँ से आ गए, देखो ने, कैन यू सी जी? यस, ये देखें, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। इमेज चेक करें, मैं ऐसा इमेज कहाँ से ढूंढता फिरूंगा, मेरी तो पसली नहीं है। ये essential tool being a productive employee is a देख लो, must have for the future. ये एक एक सैंपल दे रहा हूं मैं आपको। ये देखो, अब किसी किस्म की प्रेजेंटेशन आपने बनानी है ना, तो वन लाइनर प्रॉम्प्ट चाहिए बस, बाकी चीजें आप बाद में एडिट। ये एडिटेबल वर्जन है, ये देखो, मैं इस पे किसी पे भी क्लिक करूंगा, आई कैन एडिट। ये सोर्स फाइल है, मैं जो मर्जी इसमें चेंज करता फिरूं। ये इसमें क्योंकि फ्री वर्जन है, तो आप एक प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड्स तक बना सकते हैं। लेकिन मैंने पेड खरीदा हुआ, तो मैं जितनी मर्जी बना लेता हूँ। तो मैंने आपके लिए बनाई थी, इसको मैं अगर बंद कर दूं, जो मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें 30 स्लाइड्स बनाई हुई है मैंने। ये देखें, ये 30 स्लाइड्स हैं फॉर यू। और इसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल्ड वो चीजें डाली हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं, उनका एक एक डिटेल्ड स्टेप डाला हुआ है। तो अगर नहीं आएंगे तो फिर कैसे करेंगे? खैर, अच्छा जी, अब आपको आंसर मिल गया कि आप पूछ रहे थे कि इसका कैरियर क्या है ना। हाफिज साहब, आप यही पूछ रहे थे ना कि बिजनेस एनालिस्ट का फ्यूचर कैरियर क्या है। यस यस अब आपको आइडिया हो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, हो गया आइडिया। ये फ्यूचर है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं ना, तो अगर आपको एनालिटिक्स नहीं आता, बाहर के मुल्कों में तो, जी जी लाबिका पूछे, आप प्लीज सवाल पूछे। मैं तो कब से कह रहा हूँ सवाल पूछे, आप लोग पूछते नहीं है। आप लिख के पूछना चाह रहे हो या बोल के? आप आपका यू हैव रेज्ड हैंड। Am I audible? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। Okay. So, sir, first of all, thank you so much for this extensive training. एक बहुत ही न्यू आउटलुक है, मैंने पहले भी डेटा पे काम किया है, और एक नया पर्सपेक्टिव है ऑन वर्किंग डेटा। ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि आई एम फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड, ठीक है, बट आई हैव वर्कड विद डेटा ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर ऑफ प्रोजेक्ट, और इसके अलावा मैंने नेस्ले में भी जो प्रोजेक्ट किया था, सेल्स प्रोजेक्ट, उसमें सारा काम डेटा का, ठीक है। उसमें मैंने बेसिकली पिवट टेबल यूज किया था। बट मेरा जो क्वेश्चन है कि इफ आई वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ डेटा, और उसके लिए जो कौन सी सर्टिफिकेशंस या कोई डिग्री इफ यू वुड रिकमेंड इट जो कि बेहतर है, इफ आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इन दिस फील्ड। कोर्सेरा के भी जैसे कोर्सेज हैं, ठीक है, तो आर दे वर्थ इट, शुड आई गो फॉर देम और शुड आई ऑप्ट फॉर अ डिग्री? ओके, आजकल इसके लिए डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं भी, अगर किसी बंदे ने मुझे सीवी भेजी है, तो सीवी में मैं स्किल्स देख रहा होता हूँ, बजाय उसने लिंग्विस्टिक में कुछ पढ़ा हुआ है कि, लेकिन उसने चीजें सीख ली हैं। तो आई वुड रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरी वन ऑफ यू, कोर्सरा पे जाएं। वहां पे एक कोर्स है गूगल एनालिटिक्स, 6 महीने का कोर्स है। उसमें 8 कोर्सेज हैं, 8 कोर्सेज हैं। उसमें आपको बेसिक्स ऑफ डाटा वो सारी सिखा देते हैं, लेकिन वो पेड है। मेरा ख्याल $50 पर कोर्स है पर मंथ। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने जाना है वहां पे, उनको फाइनेंशियल एड की ऑप्शन होगी, आपने वो अप्लाई करनी है। व्हेन यू विल अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड,
अगर 8 कोर्सेज हैं तो आपने 8 ईमेल जनरेट करनी है और उनको सेंड कर देनी। उसमें आपने रीजन देनी है कि आई एम स्टूडेंट और आई कैन नॉट पे, या आई एम अर्ली जॉब सीकर, तो मेरे पास पैसे नहीं है, आई कैन नॉट पे, तो मुझे इसको फाइनेंशियल एड दीजिए टू ग्रो माई कैरियर। आपको वो 6 महीने का कोर्स मिलेगा, गूगल एनालिटिक्स उसका नाम है, बेसिक्स वाला है। 6 महीने का कोर्स है। वंस यू गो थ्रू इट और आपकी सीवी पे वो लिखा गया ना, तो जो मेरे जैसा बंदा है जिसने हायर करना, उसको ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आपको बेसिक सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें वो टेस्ट होता है, तो आप टेस्ट दे के पास करते हैं, फिर वो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप गूगल सर्टिफाइड का ठप्पा लग जाता है। दूसरा, इसी का फिर दूसरा वर्जन है अगला 6 महीने का, एडवांस एनालिटिक्स। जब आप ये समझ पढ़ लेते हो ना, तो ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको इस फील्ड में एक्चुअली लेटेस्ट ट्रेंड से बताती है आपको कि काम कैसे करना है। डेटा एनालिटिक्स में एक्सेल, गूगल शीट, टूल्स जो है ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टूल्स कोई भी हो सकते हैं, आज पाइथन चल रही है और लैंग्वेज चल रही है, पहले एक्सेल चलती थी, हर वक्त कोई ना नई टूल आ जाता है। बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो है लॉजिक्स, एल्गोरिदम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये बहुत रेयर है, ये इसकी बहुत वैल्यू है। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस प्रॉब्लम देते हैं तो दे कैन नॉट सॉल्व इट। उस बिजनेस एनालिटिक्स, ये दोनों कोर्स आपको सिखाएंगे कि एक्चुअली है क्या एनालिटिक्स, उस पर काम कैसे करना, कौन कौन से टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से टूल सीख लेने चाहिए, किन पे कैसे काम करना चाहिए। ये 2 तो मेरी तरफ से मस्ट हैं कि आप इनको कर गुजरो। 6 महीने का टाइम है। आप अगर ज्यादा एक्टिव हो तो आप 1 महीने में भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। वो आपने उनकी वीडियोस देखनी होती हैं और वो फिर उनके बाद वो क्वेश्चंस होते हैं और आपने वो सॉल्व करने होते हैं और गेट सर्टिफाइड। ये पहला सवाल है। दूसरा, कि इस फील्ड के अंदर जो आपने ऑल अबाउट डेटा भी लिखा था, हमें हर वक्त बंदा चाहिए। अब हर ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप लोगों को आइडिया नहीं है, अगले 2 3 4 साल बाद देखिएगा, सिंपल जो एक्सेल के लोग होते थे ना, जिनको हर जगह एक्सेल में काम करते, दे नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जो है वो बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायर्ड है। जी मलक साहब, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। तो जो एनालिटिक्स के लिए बंदे रिक्वायर्ड होंगे ना, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उनको एक डाटा सेट, जिस तरह आज मैंने आपको फाइल दी है, वो उनको फाइल दे देंगे, उन्हें कहेंगे हमें एनालिसिस बना के दे दो, क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, कौन सी चीज किधर चली है, क्या नंबर्स हैं, क्या फीचर्स है, फंक्शंस है, ताकि उनसे कोई डिसीजंस लेके ना कोई कंपनी अपने आप को आगे ग्रो करा सके। अगर आप इस कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं तो फ्यूचर इज योर्स। लेकिन अगर इफ यू डोंट डू इट तो फिर आपकी जगह कोई और कर लेगा। तो दैट इज अ वेरी रिस्की पार्ट, क्योंकि एआई टूल्स, ये जो मैंने आपको गामा.com एप्लीकेशन बताई है, मेरे स्टूडेंट है, एक 5वीं क्लास की है बच्ची और एक 7वीं क्लास का बच्चा, वो दोनों बहन भाई हैं। उनके अब्बू ने मुझे सर्च करके मुझे कहा कि ये मुझे इनको ट्रेनिंग दे, वो इस क्लास में मुझसे पढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें पहले दिन एक असाइनमेंट दी प्रेजेंटेशन बनाने की, वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन मैंने यूसीपी में एमबीए एग्जेक्टिव को पढ़ाया था, उनमें से कोई बंदा नहीं बना सका जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन वो 5वीं क्लास की बच्ची ने और बच्चे ने बनाई 7वीं क्लास। मैंने उनसे पूछा ये कैसे बनाई, कहता एआई से। मैंने कहा कौन सी एआई? उसने ये मुझे वेबसाइट बताई, अंदाजा लगाओ। मैंने उसको यूज किया तो मैंने परचेज कर ली है, क्योंकि मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा था कोई ऐसी वेबसाइट जो इतनी कॉम्प्रीहेंसिव प्रेजेंटेशंस बनाए। तो वो बच्चे इस क्लास में, इनको ये पता है, तो जब वो बड़े होंगे और आगे आएंगे तो वो फिर बाकी लोगों को कैसे मतलब कंपटीशन टफ देंगे। तो दिस इज मस्ट। अभी आप देख लो, मुझे इस पे दुख भी होता है लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे मिस रुबीना ने कहा था 110 लोग रजिस्टर्ड हुए, ज्वाइन कोई 30-32 ने किया था, हमारे साथ रुके कोई 20 है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको इतना मुश्किल ले लिया है कि उसको सीखना ही नहीं चाहते। दिस इज वेरी रिस्की एरिया कि आप एक चीज नहीं सीखेंगे तो कल को आप फिर वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। जी, आर यू ओके विद इट लबिका? आपका नाम मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? Yes, sir. It's Labika, and yes, the answers were very satisfying. Thank you.
वेलकम। और बाकी अगर अब पिछले कोर्स में भी मैंने कहा था सेशन में कि आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए होती है तो उस ग्रुप में मैं मौजूद हूँ, वो जो हम व्हाट्सएप ग्रुप है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन मिस रुबीना के थ्रू। इफ यू नीड एनी हेल्प तो यू कैन कनेक्ट विद अस, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और बेसिकली माशाल्लाह। मैंने मेगा प्रोजेक्ट्स का डाटा इकट्ठा करना है और उसको एआई के थ्रू एनालाइज करना है, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू एनालाइज करना है और बिग डाटा और ब्लॉकचेन के थ्रू एनालाइज करना है। तो उसके लिए मुझे आप रिकमेंडेशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मुझे सीखने की ज़रूरत है? आपने कुछ नहीं सीखना, आपने सिर्फ एक चीज सीखनी है, हाउ टू यूज चैट जीपीटी इफेक्टिवली। सर That's it. वो मुझे बड़ी परफेक्ट आती है सर, उसमें मैं परफेक्ट हूँ। उसमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि आप एक होता है प्रॉम्प्ट लिखना और उससे चीज लिखवा लेना, एक होता है कोई चीज डेवलप कराना। चैट जीपीटी के थ्रू एक वेबसाइट डेवलप हो सकती है। जितना डाटा भी आपने एनालिसिस करना है ना, अगर आप इसको चैट जीपीटी के थ्रू एनालिसिस कर पाओगे ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर फ्यूचर इज योर्स। चैट जीपीटी उसको एनालिसिस कर सकता है हर लैंग्वेज। आपने ये सीखना है, और अगर कहीं पे आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम अवेलेबल। क्योंकि जितनी भी एक और भी है, हम सब हम एक वो गूगल का एक और टूल भी है, वो मेरे जेहन से निकल गया, उसका नोट एलएम है मेरा ख्याल, गूगल का नोट एलएम। उसमें आप अपना डाटा देते हैं और उससे सवाल पूछते हैं, आपको सारे एनालिसिस दे देता है वो। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज, जितने नाम आपने लिए ना डाटा का एनालिसिस करने के लिए, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि सवाल निकालने क्या है, उसका जवाब क्या निकालना है, फिर वो स्टडी करनी क्या है। तो इफ यू नीड माई हेल्प तो आई विल बी अवेलेबल। बाकी आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और चैट जीपीटी को ना अपना बेस्ट बडी बना लें। दिस इज फ्यूचर। चैट जीपीटी का मतलब एक चैट जीपीटी नहीं है, उसमें अब जेमिनाई भी है, आपका एआई पावर्ड कोई भी टूल हो सकता है, को पायलट भी है। वट एवर यू कैन यूज इट। बट अगर 100 बंदा है ना, तो बेस्ट यूजर अगर आप हैं तो आप उनसे टॉप पे आ जाए। क्योंकि हर बंदे के पास एक्सेल मौजूद है, लेकिन एक्सेल का फायदा कोई नहीं उठाता। गूगल शीट मौजूद है, तो जो फायदा उठाएगा ना उसको फायदा हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि चैट जीपीटी से इतना परफेक्ट किस्म का काम कराएं। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपको कहता है चैट जीपीटी से कराया, तो दिस इज नॉट अ गाली। अक्सर लोग कहते हैं चैट जीपीटी से कराया, तो वो चैट जीपीटी बनाया ही इसलिए गया कि उससे काम लिया जाए। सही है जी। ठीक है जी मलक साहब। जी अब बाकी जिन्होंने हैंड रेज किया, वो मेरे पास फिर से दो आ रहे हैं। ये हैं शहजादुल हसन खारा। जी थैंक यू प्लीज। सर। आप आपके आंसर का आपसे अगर प्राप्त करना हो तो कर सकते हैं सर, जी कोई भी जी क्वेरी के बिल्कुल लिए। कर सकते हैं, मैं उस ग्रुप में एडेड हूँ। मिस रुबीना से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दें, मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। इट्स ओके, नो थैंक यू इशू। सर। थैंक जी शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मलिक नसीर साहब का क्लास फेलो हूँ आल्सो। हम लाम्स में इकट्ठे हैं। तो ओके मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है डीएचए में। ठीक है। तो हम लोग मैनुअली डाटा पे काम करते थे कि डीएचए से डाटा परचेज कर लिया, डिफरेंट कंपनी से डाटा परचेज किया और उस पर हम कॉलिंग करते थे या मार्केटिंग टेक्स्ट मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग करते थे। तो उसको उस डाटे को मैं कंप्रेस करके रूटीन में उससे मार्केटिंग करना चाहता हूँ। तो उसमें के लिए मुझे कोई हेल्प आप दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं किस तरह से? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उस डाटे को यूज करके पहले अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करें। देखें, जी इफेक्टिव मार्केटिंग और नॉन इफेक्टिव मार्केटिंग में बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? आप मतलब मैं हूँ, मेरी जेब में पैसे ही नहीं है और आप मुझे मैसेज भेजे जा रहे हैं प्लॉट खरीद लो, तो दिस इज नॉट इफेक्टिव। तो आपने पहले टारगेट मार्केट डिफाइन करनी है कि जो बंदा जिसको मैसेज भेज रहे हैं वो इसका टारगेट है भी कि नहीं है। तो ये डाटे पे सारे एनालिसिस परफॉर्म करने हैं पहले, फिर मार्केटिंग करनी है। नहीं तो डेली इतने एसएमएस आते हैं, कोई पढ़ता है? अगर मेरे मतलब का आएगा ना तो मैं फौरन पढ़ लूँ। एग्जाम्पल है कि मैंने प्लॉट बेचना है, आपकी तरफ से मुझे मैसेज आता था सेल अ प्लॉट इन अ वेरी इफेक्टिव प्राइस, कॉन्टैक्ट विद अस फॉर टू सेल दिस प्लॉट। मैं फौरन से पहले आपको कांटेक्ट करूंगा। आप मुझे प्लॉट बेचने का मैसेज करी जाओगे तो मैं आपको कहूंगा लो, मैंने तो खरीदना है, मुझे बेचने की बातें करी जाए। तो टारगेट
मार्केट और उस डाटे को यूज करना इट्स अ वेरी सीरियस स्किल। तो वो आप उसको इस तरह से यूज करो, और अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए हो, तो कोई एनालिटिक्स बनाने हो, तो स्टडी करनी हो, तो यू कैन कनेक्ट विद मी, नो इश्यूज। थैंक जी लाबिक, नो इश्यूज, हम यू, थैंक यू बहुत पर्पज ये। जी लाबिका। ओके सर, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अब जैसे डेटा एनालिटिक्स है, इसी तरह एक फील्ड है डेटा साइंस, ठीक है, तो उनको बहुत यस। ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। I want you to clarify what is the difference between it, or in which direction should we head? यार 4 रोल्स हैं बिजनेस एनालिटिक्स में। 4 रोल्स हैं। एक है सिंपल एनालिस्ट। सिंपल एनालिस्ट वो है जो आज से पिछले 15-20 साल से मार्केट में अवेलेबल है। हर वो बंदा जो किसी सीट पे बैठा है, कंप्यूटर पे बैठा है, और वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में डाटे के साथ, वो एनालिस्ट। पहले वो रिपोर्टिंग का बंदा होता था, अब उसको एनालिस्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? एक रोल ये है कि वो सिंपल एनालिस्ट। Yes sir. दूसरा रोल इसके बाद शुरू होता है डाटा इंजीनियर का। डाटा इंजीनियर वो है जिसको हम पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते थे, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, हमें ईआरपी सिस्टम बना के देते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। वो सारे लोग जो है ना, वो डाटा इंजीनियर होते हैं। उनका काम है 24 घंटे प्रोग्रामिंग करी जानी और बस पागलों की तरह प्रोग्रामिंग करी जानी। उन्होंने प्रोग्राम बना के हमें देने होते हैं। ठीक हो गया? ये दूसरा रोल है। इसके बाद तीसरा रोल आता है बिजनेस इंटेलिजेंस का, बीआई। ये जो रोल है जिसमें हम काम करते हैं, ये वो वाला रोल है जिसमें हमें बिजनेस भी आता है और हमें प्रोग्रामिंग भी आती है, लेकिन हमने करनी नहीं है, हमने करवानी है। कैसे? मैं अगर बैठा हूं तो आप लोग हो या मेरी ऑफिस में कोई लोग हैं, वो मेरे पास आएंगे, वो मेरे से डिस्कशन करेंगे, वो मुझे अपना मसला बताएंगे। वो बताएंगे जी मेरे पास एक्सेल फाइल है, मेरे पास गूगल शीट है, या किसी तरह भी ये डाटा है, इस डाटे का एक सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम को एनालिसिस करना है, एनालिटिक्स बनाने हैं, डैशबोर्ड बनाने हैं, फिर उनसे कोई चीज़ें निकालनी है, फिर डिसीजंस लेने हैं ताकि हमारी कंपनी या हमारा डिपार्टमेंट ग्रो कर सके। तो हमारा काम क्या होता है कि उनसे सारे एनालिसिस करके चीज़ें बना के लाइव करके उनको दे देना, ताकि उनका डिपार्टमेंट चल पड़े। हम बहुत सारे डैशबोर्ड्स बनाते हैं। ये जो बीए वाला रोल है ना, दिस इज हाईली पेड, क्योंकि जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको बिजनेस नहीं आता, तो इसलिए वो ना सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाते हैं। सैलरीज डाटा इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो टॉप पे कभी नहीं जाते। आपने कभी किसी कंपनी का सीईओ बीए का बंदा नहीं, उसका सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं देखेंगे। वो प्रोग्रामर होगा और वहीं बैठा पैसे ले रहा होगा, प्रोग्रामिंग करता रहेगा। लेकिन जो ऊपर आता है, जो कंपनी का मालक बनता है, जिस तरह फेसबुक का मालक है जुकरबर्ग है, इसका लैरी पेज है, ये लोग जो बिल गेट्स है, ये लोग हैं बीए के बंदे, इनको बिजनेस आता है। ये सारे वो बिजनेस वाला काम करते हैं। चौथा रोल है डाटा साइंस का, जो सिर्फ दुनिया में 5 से 10% लोग होते हैं। वो लोग कौन से हैं? वो लोग ये हैं जो मशीन लर्निंग पे काम करते हैं। ये चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उन लोगों का काम है। इसके लिए तकरीबन आप या तो पागल हो, या क्रैक हो, या फिर गॉड गिफ्टेड हो कि आप हर वक्त ये काम कर सकते हो। जिस तरह कोई हमारा पीएचडी हमारे साथ, तो पता नहीं इस वक्त है कि नहीं, जिस तरह पीएचडी करते करते बंदा तकरीबन घूम जाता है और उसकी उम्र भी गुजर जाती है और वो मेहनत कर करके पागल भी होता है, पीएचडी कर लेता है, फिर पाकिस्तान में तो वो सिर्फ फिर टीचिंग ही कर पाता है, वो प्रैक्टिकली रिसर्च तो पाकिस्तान में होती नहीं, तो वो फिर बाहर जाता है। और डेटा साइंटिस्ट वो लोग हैं जो ये सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और ये दुनिया की नई नई इन्वेंशन पे काम करते हैं। अगर हमें डाटा साइंटिस्ट बनना है, पाकिस्तान में इसका स्कोप इतना ही है जो 2-4% है, क्योंकि डाटा साइंस का बंदा पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको हर हाल में पाकिस्तान से बाहर जाना है, नहीं तो बाहर के प्रोजेक्ट्स करने। तो पहला एनालिस्ट जो है वो ऑब्सलीट हो रहा है। डाटा इंजीनियर का बहुत स्कोप है, बीए उनके ऊपर होता है। हम सारे 50 हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डाटा इंजीनियर्स, लेकिन हम उन सब के ऊपर बैठ के सारा काम कर रहे हैं। लेकिन हम डाटा साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ना कंप्यूटर बना सकता हूँ, ना ही मेरी कोई औकात है। तो डाटा साइंस इज द टॉप मोस्ट कैटेगरी। गॉट माई पॉइंट?
Yes, sir. Thank you so much. You're welcome. जी, anyone else जी? जी उस्मान, मोबाइल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप बता रहे थे कि जो गूगल एनालिटिक्स का जो बेसिक सर्टिफिकेशन है वो उसमें हम 8 कोर्सेज ले सकते हैं। सर वो मुझे आप बताएंगे कि वो हमने किस पोर्टल के थ्रू लेने हैं, किस वेबसाइट के आपने थ्रू? गूगल पे जाके लिखना गूगल एनालिटिक्स कोर्स, वो कोर्सरा पे आपको ले जाएगा। वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का जी कोर्स सर। होगा, उसकी आपको समझ आ जाएगी। उसमें नीचे जाओगे ना तो वो 8 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल ना जो है, ठीक है हर सर। मॉड्यूल का कोई वीकली मेरा ख्याल 10 घंटे उसमें लिखे होते हैं, इतना सा है। तो वो 6 महीने का कोर्स है। आई वुड रिकमेंड कि इनिशियली इधर उधर पंगे लेने की जरूरत नहीं है, लोकल कोई भी किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। पहले 6 महीने वाला वो कोर्स कर लो, फिर उसी का एक एडवांस वर्जन है। अगर 1 साल सिर्फ यही, जो वैसे तो 6 महीने में हो जाता है, करने वाले कर लेते हैं, सिर्फ ये 2 चीजें कर लो ना तो आपका ट्रैक, आपका विजन, आपका सोच बिल्कुल सेट हो जाती है। जी सर। आपने जाना किस साइड पे है, फिर आपको टेंशन नहीं होती। और फिर इसका वैल्यू भी बढ़ी है, गूगल सर्टिफिकेशन की वैल्यू भी बढ़ी है। कोर्स अभी हो क्या रहा है, कोर्सरा से हर बंदा सर्टिफिकेट करता है और लिंक्डइन पे लगाता है, लेकिन उसको काम कोई नहीं आता। तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन जब आप ये गूगल का कोर्स करेंगे ना तो फिर आपको फायदा होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम भी कराते हैं। तो ये दिस इज नहीं ऑल सर, तो अबाउट। ये फिर फर्क क्या है? तो ये भी कोर्सेरा के थ्रू ही हम करेंगे या ये नहीं सेपरेट गूगल एनालिटिक्स पे ले जाएगा? नहीं करेंगे कोर्सरा के थ्रू, लेकिन दिस इज डिजाइंड बाय गूगल। ओके ओके। ये गूगल का अपना कोर्स, ठीक है सर्टिफिकेट सर। भी गूगल का मिलेगा। कोर्सरा का ठप्पा तो लगेगा, लेकिन गूगल ने कोर्स रखा हुआ। ठीक है सर। ठीक है जी। एक मैंने चीज करानी थी, वो रह गई है, वो सर फिर मैं इसमें जो रिकॉर्डिंग कर गूगल दूंगा। एनालिटिक्स के 8 कोर्सेज हैं तो उनके लिए 8 ईमेल सेपरेट बनानी पड़ेंगी। यस, हर तो एक की फाइनेंशियल एड आपने मांगनी है उनसे। वो तो एक वो ही ईमेल को आपने रिपीट कर देना, चैट जीपीटी को कहना कि इस कोर्स के हिसाब से इसको चेंज करते जाओ। वो सारी की चेंज करके आपने तो चैट लेकिन जीपीटी से वो लिखवा। 8 सर्टिफिकेट तो फिर वो अलग अलग बंदों के हो जाएंगे, क्यों वो उसका क्या? नहीं नहीं, 8 सर्टिफिकेट नहीं, ये आपने एक ही बंदे ने 8 ईमेलें करनी गूगल को। अच्छा अच्छा। आपने अपने ईमेल आईडी से 8 ईमेलें करनी है। हर ईमेल के अगेंस्ट वो आपको अलहदा से अप्रूवल देंगे, और जी वो ठीक। लेते हैं 15 से 20 दिन एक ईमेल का जवाब देने के लिए। जी तो आप ठीक। अगर उनको इकट्ठी डे बाय डे ईमेल्स करेंगे तो डे बाय डे वो फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 दिन के बाद आपको रिप्लाई करेंगे, और फिर आपको लॉग इन करने देंगे। फिर आपके पास एक टाइम होगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपने वो कोर्स करना होता है, 6 महीने। आप लेट करेंगे तो वो वापस हो जाता है, वो दोबारा नहीं करने देते। और वो तो लेते हैं सर वो। हर मॉड्यूल की सेपरेट अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इट मींस? यस, हर मॉड्यूल की सेपरेट अप्रूवल है। तो वो आपको अदरवाइज वो 6, 5, 3 या 2, 5, 40 तकरीबन वो आपको $450 में पड़ता है। इस तरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा आपका। तो वो वाला कोर्स बहुत अच्छा है। फिर इसी का सेकंड वर्जन है एडवांस एनालिटिक्स। तो वो 2 कोर्सेज भी कर लो ना तो आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। जी आकिफ, आपने हाथ उठाया। जी आकिफ साहब। सर थैंक यू वेरी मच। तो मैंने पूछना था, बीइंग इन टेक्निकल फील्ड में एक काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में फाइंड करता हूँ बीइंग एज अ हॉबी। तो उसमें मैं थोड़ा इन्वॉल्व हूँ कोडिंग पाइथन वगैरह में भी। तो अभी आपने जो डिस्कस किया था बीआई और डेटा साइंसेस के रिलेटेड, तो उसमें मेरी जो थिंकिंग थी थोड़ी सी वो इस डायरेक्शन में है। मुझे नहीं पता वो किस फील्ड में लाई करता है। इन माय अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट बीआई, मे बी समवेयर एआई और डीएस की इन बिटवीन ओवरलैपिंग होगी। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से काफी है मैन्युफैक्चरिंग स्केल के ऊपर, जो प्लांट लेवल पे जो एप्लीकेशन है लेटेस्ट, जिसका मैंने मतलब एक इंटरेस्ट है क्योंकि मेरी फील्ड से काफी जुड़ा हुआ है। मेरा काम ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही है, क्योंकि वहाँ हम शट डाउन और रिपेयर का काम करते हैं। तो उसमें अगर मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने इस इंटरेस्ट को अपनी रनिंग जो मेरा एक प्रोफेशन है उसके साथ पैचअप कर सकूं। तो इस पे काइंडली अगर आप मुझे कुछ गाइड या थोड़ा लाइट थ्रो कर सकते हैं, ऑन राइट लाइन और इट्स नॉट फिटिंग एनी वे। थैंक यू। वी कैन डिस्कस इन डिटेल 1 to 1। हम उससे कनेक्ट हो जाना, फिर हम कर लेंगे। क्या कहते हो? या फाइन, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम। फिर मैं थोड़ा सा समझ भी लूंगा सिनेरियो, फिर उस तरह से प्रॉपर गाइड कर सकूं। चलो ठीक।
हाफिज साहब आपने कहा जी आप नेम ऑफ द कंपनी, यार लिंक्डइन भरा पड़ा है आप। अच्छा एक और चीज आप लोगों को बता दो, हमारी जो सीवी है ना, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। मेरे पास 90 सीवीज आई हैं, मैंने चैट जीपीटी से फिल्टर कराई है। मैंने उसे कहा जी मेरा ये जीडी है, इस जीडी से रेलिवेंट सीवीज फिल्टर कर दो। उसने मुझे 8 सीवीज फिल्टर कर दी। मैंने सिर्फ उन सीवीज को पढ़ा है और उनमें से बंदों को कॉल की। अगर आपकी रेलिवेंट सीवी में वो चीजें मौजूद नहीं है, हम एक सीवी बनाते हैं 50 जगहों पे अप्लाई कर देते हैं, तो हम कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होते। तो एआई को यूज करके ना पहले सबसे अपनी सीवीज को स्ट्रॉन्ग करें। जिस चीज के लिए आपने अप्लाई करना है वो टैग वर्ड्स, वो टेक्निकल स्किल्स, वो आपकी सीवी के अंदर आने चाहिए। आप तो लिंक्डइन बता रहा होता है कि आपकी प्रोफाइल इस जॉब से कितने परसेंट मैच करती है। अगर आपकी कोई मैच ही नहीं करती, आप अप्लाई करके बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कि आपको कॉल आ जाएगी, दिस इज नॉट गुड। अभी मैंने जिसको कॉल की है वो फ्रीलांसिंग करता था, उसने जॉब की कोई नहीं, लेकिन उसने सीवी ऐसी बनाई हुई थी, कोई शॉर्ट लिस्ट हो गया, मेरे पास इंटरव्यू भी दे गया, मैंने प्रैक्टिकल भी कर लिया, टेस्ट भी ले लिया उसका, वो ठीक भी था, गुजारा भी हो गया। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। फ्यूचर में प्रोग्रामर्स जो है ना उनकी जरूरत, अभी जो मैंने आपको gamma.com दिखाई है ना, अगर आप लोग खुद ही इसको बाद में टेस्ट करना, आपने उसको कहना वेबसाइट बना दो, उसे कहना मेरी पर्सनल वेबसाइट बनानी है, उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे दो, अपनी डिटेल सीवी दे दो बेशक, उसे बोलो मेरी इस प्रोफाइल से मेरी एक पर्सनल वेबसाइट बना दो। एग्जैक्टली 2.5-2 मिनट में वो आपको पूरी वेबसाइट बना देगा। मुझे बताओ फ्यूचर में वेब डेवलपर का क्या रोल रह गया, वो वेबसाइट ही बनाता है ना। तो जब चैट जीपीटी या एआई बना देगी वेबसाइट, तो उस बंदे की नौकरी तो खतरे में। सही है सर सो रेज्यूमे के लिए कोई अच्छी सर एआई आप अगर वेबसाइट सजेस्ट करें अच्छी रेज्यूमे बनाने के लिए? यार मैंने अभी बहुत सारी टेस्ट की हुई है, लेकिन ना मुझे जब जो कल परसों मेरे पास जब सीवीज आई हैं तो कुछ सीवीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो jobby.pk JOBEE jobby.pk है ये यस आयो सर है। ऐसे ही है। जी जी। उस पे जाके ना उसका एक फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन इनपुट करोगे ना तो आपको वो थीम्स देता है 15-20। वो बड़े कमाल के थीम्स हैं और वो बड़े अट्रैक्टिव हैं। मैंने अपनी सीवी खुद उससे कल परसों चेंज की, हालांकि मैंने बहुत सारी सीवीज बनाई है। लिंक्डइन का तो बिल्कुल ही पैथेटिक है, वो तो फॉर्मेट ही बेड़ा घर कर देता है। फिर मैंने कैनवा पे मैनुअल बनाई थी, आई डोंट लाइक इट। तो थीम बेस्ड जो है ना, वो आप इनपुट लेके जॉबी को ट्राई करो, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, और वो बड़ा मतलब अट्रैक्टिव फॉर्मेट बना के देती ओके है। सर। और उसमें टैग वर्ड्स भी डालने की इजाजत देती है ताकि आपकी सीवी फिल्टर हो जाए। हाफिज साहब, हाफिज तैमूर आपने पूछा है नेम ऑफ द कंपनी, कौन सी कंपनी पूछ रही है हाफिज साहब? आप कौन सी कंपनी पूछ रहे हैं? सर मैं पूछ रहा था कि आप बता रहे थे ना कि आप के पास आए हैं लड़के जॉब्स के लिए, तो मैं ये पूछ रहा था कि आपकी सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई इंस्टीट्यूट है, ये पूछ रहा नहीं, था। मैं तो मैंने बताया था मैं बीकन हाउस में हूँ, बीकन हाउस। कि वो आपने स्टार्ट में बताया था, मैंने तेरा लेट ज्वाइन किया था। चलो आप अपनी प्रोफाइल मुझे भेज दो, अगर आप हो तो पाइपलाइन में बंदे तो हर वक्त ही चाहिए होते हैं। अगर आपको काम आता है तो आप सीवी भेज दो, उसमें स्टडी करने में तो कोई अर्थ। ओके व्हाट्सएप कर दूं फिर आपको? हाँ जी बिल्कुल कर दें, कोई मसला नहीं। ओके अगर आप ओके। आज नहीं तो मेरे पास तो बंदा कोई ना कोई, मेरे पास नहीं मेरे नेटवर्क में भी कोई ना कोई बंदा मुझसे मांगते ही रहते हैं, तो हमें उस वक्त बंदे नहीं मिलते। फड्डा ये है कि जो स्किल सेट हमें चाहिए वो बंदे, अभी ये अबू सुफियान जो चीमस हमारे साथ हैं, इन्होंने पिछला सेशन ज्वाइन किया था, और मजे की बात ये है पिछले सेशन से लेके इस सेशन तक ये अबू सुफियान इतनी चीजें कर चुके हैं, आपको आपकी सोच होगी। कोर्स इसने एक सर्टिफिकेट भी किया, लेकिन प्रैक्टिकली जो इसने काम किया ना वो आपकी सोच है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद अबू सुफियान। हालांकि सऊदीया में मैनेजर पोजीशन पे अकाउंट्स में बैठा, लेकिन स्टिल ही लव्स टू लर्न। इसने पिछले 2-3 महीनों के अंदर ही इतनी चीजें सीख ली हैं कि हम सरप्राइज। मलक नसीर साहब वो ग्रुप के अंदर है, वो आप ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, उसमें नंबर डला हुआ है। जी सर, ग्रुप में तो हूँ, उसमें आपका नाम नजर नहीं आ रहा। चले मैं लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, ठहर। 032143432227। जीरो पता नहीं लिखा गया कि नहीं, जीरो लिख लेना पहले। जी सर थैंक्स।
जी, एनीवन एल्स जी, क्योंकि 5:30 का टाइम दिया था आप लोगों को, 5:30 होने वाले हैं। Same with this, sir. We will close it like in 2 minutes or 5 minutes maximum. या किसी का अब सवाल तो सारे कंप्लीट हो गया, किसी ने कोई फीडबैक देना तो दे दे, मेरी एक चीज रह गई है। सफियान कह रहे हैं योर फॉलोअर्स है, ये सफियान जी पिछले सेशन में था मिस रुबीना, और इसने वहीं से मेरे से कनेक्ट किया और इसने मेरे से बहुत सारे काम मतलब कनेक्ट करके सीखे, और ही इज माशाल्लाह वेरी गुड इन डाटा नाउ। हालांकि इसने कोई एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी किया था, लेकिन Very nice. ही इज ऑन ट्रैक। मैं बड़ा खुश हूँ इससे। Very good. Yeah, it was a very great learning session. मैंने खुद बहुत कुछ सीखा आपसे, and hopefully बाकी सब जो attendees हैं उन्होंने भी आपसे सीखा होगा। और कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए या किसी और टॉपिक पे कोई वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कोई और वेबिनार करवाना चाहते हैं तो दे कैन सजेस्ट। यस यस प्लीज, नो डाउट, एनी टाइम। और बल्कि ये सीरीज है ना, अभी आज देखें 3 घंटे में मैं सिर्फ 2 रिपोर्टें बनाना सिखा पाया हूँ। तो ये यस, एंड वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो। हाँ जी हाँ जी, और हम फिर महीने बाद कोई एक इसी तरह सेशन चलाते रहेंगे, क्योंकि एक सेशन में तो अभी चीजें शुरू होती हैं तो सेशन खत्म हो जाता है, टाइम इतना शॉर्ट होता है। चलिए कंटिन्यूस सीरीज इसको हम कर लेते हैं, तो आप हाँ ही जी, टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा। मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। मैंने 6 महीने तो सिर्फ पावर क्यूरी पे लोगों को ट्रेन किया, ये इतना बड़ा टॉपिक है, अंदाजा लगाया आप। आज तो उसका 1% अभी हमने शुरू किया था, टाइम खत्म हो गया। ठीक है जी, चलें फिर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच। आपने कह दिया, बाकी लोगों को भी सही लगा है जी? एनीवन एल्स? जबरदस्त सर, आई थिंक आपने मिक्स कर दिया सफवान को और सुफियान को। अबू सुफियान चीमा जी, वो जो मैसेज किया था वो सफवान है कोई। आप दूसरे वाले हैं? मैं सुफियान हूँ। आप कौन से वाले हैं? अबू सुफियान चीमा। नहीं, जो मेरे से कनेक्टेड रहे हैं। जी जी हाँ, तो वो सफवान रऊफ है अंदर कोई। जी, चले कोई बात नहीं, जिसकी भी तारीफ होगी, जिसकी भी तारीफ होगी को अल्लाह खैर करे। अच्छा, वो सफवान भी मेरा ही मतलब मेरा सफवान ने लिखा डाइवो वाला। हाँ जी हाँ जी, वो भी आपकी तरह ही मतलब मेरे साथ डिस्कशन में रहता है। सही। चलो हाँ, मुझे लगा नाम कंफ्यूज हो गया दोनों। नहीं, मैंने अबू सुफियान चीमा ही बोला था, वो सफवान का मुझे पता है, वो नाम ही डिफरेंट है। ठीक है जी सफवान मुझे याद है यार, केयर ऑफ द साहब ना बताओ, मुझे जुबानी याद है। चले जी, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह हमने ये रिकॉर्डिंग जो है ना 2-3 घंटे बाद गूगल मुझे भेजता है, तो मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगा, मिस से वो फिर आप लोगों से शेयर कर देंगे। सर एक क्वेश्चन था आपका, एक प्रीवियस सेशन था गूगल लुकर के ऊपर। हाँ जी, आई रिमेम्बर, तो मैंने वो एक्चुअली मिस कर दिया था ड्यू टू सम इमरजेंसी सिचुएशन। तो वो रिकॉर्डिंग अगर कहीं लिंक हो तो काइंडली वो भी बता जी दें। वो भी शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप उधर से ले लीजिए। सर आज तक के आपके जितने भी सेशन हुए उनके सारों के लिंक दे दें, रिकॉर्डिंग सारे सुन लेंगे। नहीं, अभी तो हमने यहाँ पे 2 ही वेबिनार किए हैं, लेकिन आपने और डिटेल्ड कोई मेरी चीजें देखनी है ना, तो मोहम्मद मुदस्सर तबस्सुम के नाम से ना यूट्यूब पे मेरे कोई 8-10 कोर्सेज पड़े हुए हैं, जो मैंने 6 मतलब सेशंस हैं, और एक सेशन 4-4 घंटे का है। उसमें मैंने बड़ी डिटेल से पावर क्यूरी, लुकर स्टूडियो, डैशबोर्ड्स बहुत कुछ सिखाया। वो मेरे पेड सेशंस थे, बाद में मैंने फ्री में अपलोड कर दिए, तो यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम 2 सेशंस। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे मोहम्मद मुदस्सर तबस्सुम आप ढूंढेंगे ना तो मेरा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पे वो स्टेप बाय स्टेप सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप उसको भी उसको देख सकते हैं और उससे बिल्कुल फायदा ले सकते हैं, रिकॉर्डेड है वो सारे। ठीक है जी, चलें? जी थैंक यू सो वेरी मच सर। चलें, थैंक यू एवरीवन, टेक योर टाइम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।
Yes, sir.